Said I am Ashutosh Upadhyay, coordinator academic here in PMU, which is Project Management Unit of PMFME at NIFTEM Kundli. At the outset, I welcome particularly by name my expert today. We have experts. We have our honorable director also who has joined, who has been kind enough to spare his time for this meeting. So I welcome my director, Dr. Harinder Singh Oberoi. I welcome both the speakers who has been linked with IIT Mumbai, Dr. Narendra Shah, Professor Sanjay Mahajani. I also welcome another speaker, Dr. Dilip Kumar from Sugarcane Research Institute of Lucknow under ICR. I welcome all the participants. I am really delighted to see that enthusiastic response. More than 70 already. I think they are logged in and attending this program. I'll request now my director for opening remark, please. Sir, over to you. Good morning and namaskar. Thank you, Dr. Ashutosh, and the esteemed invited speakers and participants. Well, it's a pleasure for me to welcome you all to this very important webinar on Jaggery processing. In fact, if you look at this sector is something which is almost an unorganized sector. And this is, even if you get the Jaggery packets today, whether they're Jaggery cubes or even liquid Jaggery, I mean, there are no bigwigs in the industry who are producing them. They're being produced by small-time entrepreneurs or some MSMEs, and they were marketing them in their own way. And I remember that when I was at CIFAT Ludhiana, there was one AICRP program, All India Coordinated Research Project, which was specifically on Khansari and Jaggery. But looks like the area has not been given the due importance that should have been given earlier. Any which ways, there's one thing which is very clear that Jaggery vis-a-vis crystal sugar, the white sugar, if you compare both of them nutritionally, it's much more nutritious compared to the white sugar. It has the vitamins, it has the minerals, and it can make all the difference. So the glycemic index is not much different, though the calorific value is not much different, but then, its taste and the palatability of the product is something which is very, very important, and the nutritional benefits. So that is this is how Jaggery stands out in comparison to all the sugar derivatives that are available. Formerly, just previous to this, my assignment with NIFTEM, I was working as a scientific advisor to FSSAI, and we had organized one surveillance program in Jaggery, and during which we found that there were a few samples which had colored Jaggery. Though FSSAI had not permitted Jaggery to be added to color to be added to the Jaggery, but we did find some samples having colored Jaggery. And then my CEO, who is basically a very senior secretary and a bureaucrat, he asked me, like, what is the harm if color is added to the Jaggery, and if the colors which are being added are the permitted colors as per the food safety regulations. So that was a very important aspect, because there are 8 colors which have been approved by FSSAI for use in confectioneries, bakery items, other products, but they have not been permitted in Jaggery. So we're working on that based on what kind of safety risk or safety concerns that would be associated with adding colors, because food, the addition of any additive depends on the food matrix and also to the technological advantage that it would give. Otherwise, there is no point adding any color or flavor or any other additive if it does not confer any technological advantage to a particular product. Second concern was the higher levels of sulfur. Now, sulfur, as you all know, is being used during the bleaching process. And again, there was like the limit fixed by FSSAI was only 50 ppm, and there were many samples which had sulfur content of 150 ppm, 200 ppm, and even beyond that. So, but then, coming to the acceptable daily intake, ADI, and the food basket that we have, Jaggery largely is not consumed in such high concentrations as are the staples of fruits and vegetables. So that is one thing again which which we had submitted. When I submitted my report, we had a stakeholder consultation also, and while submitting my report to the Ministry of Health and Family Welfare, we mentioned that the sulfur limit also has to be revised even for Jaggery.
So jaggery processing comes out with a lot of challenges, but I would want that in case if we can have jaggery which does not have any sulfur, and still it has its natural taste and natural aroma, natural flavor, it would have a much better market. And the third thing which where we felt there's a demand, and that is our liquid jaggery. And liquid jaggery is being supplied by very few players through only Amazon and Big Basket and other online platforms. And they might be in stores, but it's not only available. And then we also have the date palm jaggery, the palm jaggeries. So I think there is a scope of having diversified products from different raw materials. Let us not only stick to sugarcane, we can look beyond sugarcane also. So there are other sources which can be looked up, even the coconut jaggery for that matter. So anything which is available, and tomorrow we can also think about preparing jaggery from the sugar that is extracted from the bio waste or the agricultural residues. Because a lot of work has been done in the area of biovalorization, where through the pre-treatment enzymatic process we are getting sugars out of the raw material. That is maybe paddy straw, or wheat straw, the sorghum straw, or even the fruit peels and the seed, the kernels, and then use that for different, segregate it into glucose and sucrose, take out the C5 sugar, concentrate them, and bring out, develop jaggery out of that. So there's a huge scope that I see. I'm sure that all the esteemed invited speakers would would throw some insights into the novel methods that are available for processing of jaggery, and what can be done to avoid sulfur, what can be done to enhance its shelf life. Packaging is one area where we need to work on, and also, to create awareness among people about the good benefits of jaggery. That I feel is lacking. That also needs to be taken into, and also where the new technologies that can be looked into, and the new raw materials we talked about. So with this, I'll not take much of your time, and I again welcome you all, and I wish you all the very best. And I'm sure that, as Dr. Ashutosh said, we have a sizable presence of the participants here. I'm sure they'll be enlightened by what our invited speakers talk about, discuss with them, and I would request them to be very interactive. Let it not be one-way traffic. Please ask the experts about anything and everything that you feel is important for, setting up an enterprise. We look forward to having more entrepreneurs in this area, and if at all you feel that there is some support that is needed from our institute, we're always open to it. So with this, I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you, sir, for opening remark. I think it is regulatory aspects were really would be quite insightful for the audience here, and hope that, as you expected, sir, will certainly make it interactive. Thank you once again, sir. And now it is over to you, Dr. Nitin. You carry on with PMFM introduction, and immediately after that, keep the introduction very brief so that the audience can get the time for better interaction with the experts here. Thank you. Over to you, Nitin. Thank you, sir. Nitin. Please continue. Okay. So, thank you very much, sir, and thank you for giving me the opportunity to speak something about the jaggery and about the PMFME also. So, as the sir told, it is very much important topic which we have considered for the webinar, because jaggery encounters several production of jaggery encounters several obstacles consisting reduced return, low efficiency, as well as the high prices. So this webinar will give an insight for the budding startup for getting important economic advantages and providing a share to the small farmers for a sustainable growth. So for PMFME, we have a young professional or professional executive, Sri Rachmi, who is working with National Project Management Unit, MOFPI. I would like to invite Ms. Sri Rachmi, who will give us a brief about the PMFME scheme through a PowerPoint presentations. Good morning, everyone. I hope I'm audible. Yes, Sri Rachmi, please continue. Sir, thank you for inviting me. I'll just give you a brief about PMFME scheme. So with me today, I have my colleague Vaishnavi also. I'll just Good morning, everyone. Good morning.
Is my screen visible? Yes, Srishmi. Okay, Please. thank you, sir. Thank you. So first of all, PMFME scheme, Pradhan Mantri Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises. This is a centrally sponsored scheme, so which provides financial, technical, and business support for the upgradation of existing micro food processing unit as well as for setting up of new food processing unit. So background of the scheme, basically if you see, there are around 25 lakh units, micro food processing units that are unorganized in our country. And this caters to 74% of the employment in the food processing sector. And 66% of this is coming under the rural areas. So the basic motive of the scheme is to formalize these units by providing financial and technical support to them. So if you see in the micro food processing units, there are a lot of challenges that they face. They lack access to modern technology, equipment, training, and they don't have access to institutional credit. So they lack basic awareness about the quality control. In food industry, we know quality is very important. And branding and marketing. Even if they are developing a product, they find it very difficult to brand and market these products. Like the supply chain is also very bad. So we provide support in that way also. So we provide support to micro units by giving them access to modernization and enhance the competitiveness. So if you see how this is the basic shareholding pattern, like fund pattern. In states and union territories with legislator, 40% of the fund is provided by the state, 60% is by the center. In Himalayan and northeastern states, 90% by center and 10% by the states. And in UTs with the legislator, it is 100% share is covered by the central government only. These are the basic components of the scheme. The first and the most important part is support to individual and group micro enterprises. This is by providing 35% subsidy. It's a credit linked subsidy. Basically, a unit which has to be which is an existing unit. If they want to expand their existing unit, we provide financial support. They can apply for loan and a 35% subsidy on the project cost with a maximum capping of 10 lakhs is given to the enterprises. This is same for new enterprises also. And beneficiary has to contribute minimum 10% of this project cost from their hand. So like minimum 10%, maximum 40. It is like that. And 35% of the whole capital investment, which includes the machinery part, minor civil construction, and other pre-operative cost. On this part, we are providing subsidy. So the application process is very simple. The application has to be filed online through PMFME portal, and hand-holding support will be given by district resource persons who are appointed in every district. And for self-help groups, farmer producer companies or farmer producer organizations, we are providing 40,000 seed capital per member of the SHG. So these are for like purchasing of small tools or equipments for their food processing unit. Also, this SHGs, FPOs, FPCs, all these groups can avail the 10 lakh subsidy also, 35% subsidy also for their individual units. And then the third category is support for common infrastructure. Basically, common infrastructure benefit is provided to FPOs, SHGs, cooperatives, government agencies, federations, etc. And it is provided 35% only, but the capping is different. We are providing subsidy of 3 crore and the project cost can be up to 10 crore. And there is no criteria on the previous year turnover. So a common infrastructure created under the scheme should also be available for other units. That is the basic criteria, like other units or farmers for on hiring basis. And the substantial part of this unit, like the capacity of this unit can be utilized by others on hiring basis. This is the basic category. And the type of common infrastructure that we are funding is
like sorting, grading, warehouse, and cold storage units, then incubation centers, which involve one or more product line, which could be utilized by other smaller units or farmers on higher basis for processing their produce. And we also provide branding and marketing support to FPOs, SHGs, cooperatives, or special purpose vehicle of any micro food processing unit. So we are following ODOP approach, and training relating to marketing is given by the government. It is like 50% of the project cost for this branding and marketing part is given by the government. If they want to develop a common brand, or like if they need help in packaging related, like standardization to participate in common packaging, all these benefits will be provided. At the national level, NIFTM, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, NIFTM Tanjavur and NIFTM Kundli, both are technical institutes which provide help in technical upgradation and formalization. So these are the roles of NIFTM Tanjavur and NIFTM Kundli, like capacity building and training for Ministry of Food Processing, and states and district officials are provided by the institute, and development of online modules for training, and offline trainings are also conducted. Development of in each district there is a product developed, product identified. This it is called one district, one product. So these identified products, based on that products, we are providing training. Like the concentration is on those products. So the focus area of these capacity building trainings are entrepreneurship development and other essential functions and operations of the unit, like how to formalize their FSSAI license or Udyog Aadhar, Udyam registration, GST registration. How to do that, all of that will be given training on, and we are providing hand-holding support also for that. Hand-holding support is basically provided by the district resource person and the district level committees. In every district of India, district resource persons are appointed under PMFME scheme, who provide hand-holding support to the beneficiaries. They help them in preparing the detailed project report. They also help in negotiating with the bank for the loan, and also they provide support in formalization, basically for the documentation purpose and all. They provide help support to the beneficiaries. So this is basically our portal. You can see. I'll just show you the PMFME portal also. So this is the PMFME portal. So here there is login option, under which applicant registration, applicant login, and MIS login is there. So using this applicant registration, a new applicant can register for taking benefit under the scheme. And our contact details is also given in the website. So if there is any query regarding the scheme or any issues that they are facing, you can contact in the given mobile number, or can send a mail to support-pmfme@mofp.gov.in. This is our email ID. So I hope it is clear. So if anyone is having any doubt regarding the scheme, can take up the questions now, or we can do at the end of the session. धन्यवाद श्री लक्ष्मी। अब मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि पीएमएफएमई स्कीम से संबंधित अगर आपके कुछ सवाल या योजना से संबंधित कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप बारी बारी से श्री लक्ष्मी जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया एक एक करके अपने सवाल पूछें। रेज योर हैंड्स। किसी को अगर कोई
क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो कृपया आप अपने हैंड रेज कीजिए, एक एक करके। धन्यवाद श्री लक्ष्मी, आप बने रहे हमारे साथ। आपके सहयोग की कार्यक्रम में आगे भी आवश्यकता होगी। नाउ कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर नरेंद्र शाह जी को, जो मेंबर सेक्रेटरी राजीव गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में कार्यरत है। आपका तकनीकी के क्षेत्र में 43 ईयर से भी अधिक वर्षों का अनुभव है। आपने अपनी डॉक्टरेट डिग्री प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ कंपेनिया फ्रांस से इंडस्ट्रियल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में प्राप्त की है। आपने अपने कार्यकाल में IICE डॉर ओलिवर अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस, PK पटवर्धन IIT बॉम्बे रिसर्च अवार्ड ऑन जैगरी मेकिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से भी नवाजा गया है। आपने देश विदेश के विभिन्न प्रतिमंडल के साथ कार्य किया है। आप हिंदुस्तान लीवर, इंडियन नेवी, श्रीराम केमिकल इंडस्ट्रीज, टाटा ट्रस्ट, मुंबई में कंसल्टेंसी सेवाएं भी दे चुके हैं। आपके लगभग 90 के करीब प्रकाशन पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। आपका शैक्षणिक और अनुसंधान में IIT मुंबई में 33 साल का विस्तृत अनुभव है। आप इस वेबिनार सेशन में जैगरी प्रोसेसिंग में हुई रिसेंट इनोवेशन की जानकारी प्रतिभागियों के समक्ष साझा करेंगे। मैं आपका इस वेबिनार श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। Yes, good morning to everybody. नमस्ते। मैं मुंबई से ज्वाइन किया हूँ ये वेबिनार। राइट, so Dr. Harbinder Singh and the director of NIFTEM, Dr. Ashutosh Upadhyay ji, Dean at NIFTEM, and the participants who have so enthusiastically joined. About 5 minutes back, I was seeing the count. मैं देख रहा था कि 100 से ज्यादा लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, तो सभी का स्वागत है। बीच बीच में हम लोग थोड़ा अंग्रेजी बोलेंगे क्योंकि ये IIT जैसे संस्था में हम हिंदी और हमारी लोकल लैंग्वेज में पढ़ा नहीं सकते हैं, हम अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमारी आदत है कि अंग्रेजी में जैसे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चीजें हम अंग्रेजी में बोलेंगे। तो कि ये इतना मतलब अभी रिलेवेंट और कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है कि कल ही हम लोग एक महाराष्ट्र में सतारा डिस्ट्रिक्ट और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में तो जैगरी को GI मिला हुआ है। GI का मतलब है, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसको जियोग्राफिक इंडेक्स बोलते हैं। तो किसी प्रोडक्ट का जैसे बासमती को आपको ये नदर्न स्टेट्स में जियोग्राफिक इंडेक्स है, उसी तरह से हमारा जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट है उसको 2015 में ज्योग्राफिक इंडेक्स मिला हुआ है। और कल ही हम लोग एक स्टेक होल्डर वर्कशॉप, यानी कि जो वहाँ के शुगरकेन फार्मर्स है, जिनको ये उद्योग डालने में इंटरेस्ट है, और आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही कि हम लोग समझ के चले थे कि कुछ 35 फार्मर्स हमारे स्टेक होल्डर वर्कशॉप में आएंगे। तो हमें आपको बताने में इतनी खुशी हुई है कि 80 लोग आए थे हमारे वर्कशॉप में कल। और ये थैंक्स टू डॉक्टर आशुतोष, वी हैड दिस important stakeholders, that we had somebody from sort of this APEDA Mumbai office. Somebody had come from APEDA Mumbai office. So we tried to see that कि along with ये हमारे जो फार्मर्स है उनके साथ ये हमको बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज कनेक्ट करके देने वाले भी लोग रहेंगे, जो जबकि हमारा IIT बॉम्बे का टेक्निकल टीम था, क्या इनोवेशंस किए हैं वो बताने थे हमको। तो लेकिन हमें पिछले हम लोग, माई सेल्फ एंड माई कलीग प्रोफेसर महाजनी हु इज आल्सो ज्वाइंड, पिछले 10-15 साल से हम लोग ये टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमको पता है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, लेकिन IIT का ये ग्रुप हमारा माना जाता था कि थोड़ा सा हटके काम करने वाले लोग हैं हम।
तो दोनों ने हमने काम किया है और हमको इतना पता है कि जितना टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है उतना ही आगे जाके उसका मार्केटिंग कैसे करे, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनाने के लिए हम सिखा देंगे फार्मर्स को, बट उनको ये पता नहीं है कि इसको ये मार्केट इसका क्या है, कैसे उसका यूएसपी बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्रेजेंटेशन में ऐसे 5-6 बातें मैं आपको बताऊंगा कि आज की कॉन्टेक्स्ट में ये जैगरी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आपको डायरेक्टर साहब ने बताया है कि ये एक न्यूट्रिशन, एक हेल्थ फ्रेंडली स्वीटनर है। अगर आपको स्वीट खाना ही है, आपको कुछ स्वीट पदार्थ बनाने भी है, तो रिफाइंड शुगर की जगह अगर इसको बनाएंगे तो आपको इसका न्यूट्रिशन मेरिट्स क्या है, मतलब उसके साथ क्या मिनरल्स जाते हैं, विटामिन जाते हैं। आपको सबको पता है कि जो रिफाइंड शुगर है वो 19 है, और ये पिछले 10 साल के जो R&D एफर्ट्स जो हमने किए हैं IIT बम्बई में, उसके जो फाइंडिंग्स है उसको लेके मैं कुछ अभी बोलना चाह रहा हूं कि आपको एक क्या हो गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री होने के कारण ये इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट करके उसका नहीं आता, जो मतलब मंडे को बनाते हैं और फ्राइडे को बनाते हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा उसके जो गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज है जिसके जैगरी के इंपॉर्टेंट, जैसे हार्डनेस हुआ, मॉइस्चर कंटेंट हुआ, आपके डॉक्टर सिंह साहब डायरेक्टर निफ्टेम बोल रहे थे इसका कलर से कुछ होता है कुछ, तो अगर इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैरेक्टर देना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो इनोवेशन के बारे में हम थोड़ा सा बोलेंगे आपको। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको ये गूगल सर्च पे भी मिल जाएगा कि एक 25 देश इसको बनाते हैं, बट सबसे ज्यादा अग्रसर नंबर 1 रैंकिंग है इंडिया की, जहां पे हमको डेटा है कि 10 मिलियन टन हम लोग पर ईयर बनाते हैं जैगरी, और हम लोग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैगरी, एंड ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका में जो कोलंबिया है वो उसका नंबर नेक्स्ट आता है, ब्राजील, कोलंबिया वगैरह। और इसके अपने भारत देश में इसके जो नोन पॉकेट्स है, हो सकता है अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, बट जैसे हम जिस तरह से हमारी जानकारी है, और ये तीनों एरिया में हम जा चुके हैं। एक मुजफ्फरनगर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, दूसरा है अनकापल्ली इन आंध्र प्रदेश, और तीसरा है जैसे कोल्हापुर, सॉरी फॉर द टाइप स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, जिसको मैंने जिक्र किया कि जीआई मिल चुका है 2015 में। और ये पॉपुलरली यूज रॉ मटेरियल फॉर जैगरी मेकिंग है शुगर केन और पल्मेरा पाल्म। तो पल्मेरा पाल्म में ज्यादातर के अपने वेस्ट बंगाल में जो भाई बहने हैं, वो उनका जो स्पेसिफिक स्वीट है संदेश, कुछ लोग आप जानते होंगे, वो पल्मेरा पाल्म से बनाते हैं, बट उसका परसेंटेज थोड़ा सा 10 के परसेंटेज ही नीचे आ जाएगा। मोस्टली 90% एंड अबव ये जो अपने गुड़ है, जैगरी है, वो शुगर केन से बनाते हैं। तो मैं अभी ले चलता हूं आपको ये थोड़ा सा हमारा प्रोसेस इनोवेशन की तरफ, बट उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं उसके प्रॉपर्टीज। तो ये शायद आप सब लोग जानते होंगे कि इसमें जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर हम जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, जैगरी में सुक्रोज रहता है 65 to 85%, बेस्ड ऑन कि वो केन यूज किया है, अपने मैच्योर्ड केन यूज किया है, अनमैच्योर्ड है, वैरायटी है, उसका ब्रिक्स में शुगर ये मेजर करते हैं। और जो रिड्यूसिंग शुगर्स है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वो बाकी उसके 3 to 8% करके रहते हैं। मॉइस्चर इसका 3 to 10% रहता है। मॉइस्चर की महत्वता काफी है, क्योंकि जो भी कोस्टल एरियाज है जहां पे भी अपने एम्बिएंट कंडीशंस में आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उसको बुरा या हम फंगस बोलते हैं उसको लगने का चांस रहता है। इसलिए वो जैगरी का शेल्फ लाइफ थोड़ा सा, अगर आपका मॉइस्चर ज्यादा है तो शेल्फ लाइफ कम आता है। जैसे आप हमारा कोल्हापुर में जो जैगरी बनता है वो समथिंग लाइक 60% हमको बताया गया कि वो गुजरात में जाता है, क्योंकि हमारे गुजराती भाई अगर कोई वेबिनार में है तो वो जानते होंगे कि 50% जो अहमदाबाद का मार्केट है उसमें जैगरी जो है कोल्हापुर में बनता है, वो जाता है। और मैंने जब विजिट किया था अहमदाबाद का मार्केट, तो मैंने देखा था कि ये जो स्टोर्स है उसमें एक 15-20% उनका नुकसान होता है ये स्टोरेज में, क्योंकि मॉइस्चर के कारण उसको बुरा लग जाता है। और मिनरल कंटेंट दिया हुआ है, एनर्जी भी दिया हुआ है इसमें। और ये जो है ये सब ने शायद अपने जो पार्टिसिपेंट है उसमें से अभी मैं आपको देख नहीं सकता, और ये
सवाल नहीं पूछ सकता कि कितने लोगों ने ये अपना ट्रेडिशनल जैगरी या आपके नदन इसमें इसको मैं भूल गया नाम क्या बोलते हैं, बट हमारे यहाँ इसको गुराड़ बोलते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज में, महाराष्ट्र में। तो इसमें एक ये 8-9 यूनिट ऑपरेशंस रहते हैं, क्रश करते हैं, जैसे आपने इधर देखा ये क्रशिंग हो रहा है, ये नॉर्मल क्रशर यूज के 10 हॉर्स पावर का क्रशर रहता है, इसमें क्रशिंग करते हैं। इसमें आपको एक 60% यानी 60% आपको उसको जूस में कन्वर्ट मिलता है। शुगर मिल्स में आपको 70% मिलता है, बट यहाँ पे आपको 60% जूस मिलता है। और उसको जाके नेक्स्ट हम उसको हीटिंग करने चालू करते हैं। इसके नीचे एक फर्नेस रहती है, ओपन पिट फर्नेस उसको बोलते हैं हम लोग। ये ट्रेडिशनल पद्धति है आपकी, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है कि जो भी कम निकलता है इसका नॉन शुगर पोर्शंस हम ये ओपन पैन में उसको हीट करके एक कुछ अमुक पीएच पे, जो बोलते हैं 5.5 to 6.5 पीएच में। और वो कैसा मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि ये शुगर्स है तो फर्मेंट होते हैं तो इसकी एसिडिटी बढ़ती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइम डालते हैं, थोड़ा सा लाइम का डोसिंग करते हैं। और फिर उसको जो बोलते हैं हम लोग इसका स्ट्राइक पॉइंट यानी एंड प्रोसेस एंड पॉइंट 118 डिग्री पे उसका एंड प्रोसेस एंड पॉइंट होता है। उसके लिए ट्रेडिशनली कुछ एक गोली टेस्ट करके बोलते हैं, वो उसका ब्रिक्स बराबर आया है कि नहीं वो देखने के लिए ये जो ट्रेडिशनल ये कोहलू बोलते हैं, मुझे अब याद आ गया कि नॉर्थ इंडिया में इसको कोहलू बोलते हैं। तो ये जो इसके मास्टर क्राफ्ट्समैन है हमारे पार्ट में उसको गुलवा बोलते हैं। और तो ये जो है वो देखते हैं कि उसका बराबर एंड पॉइंट आया है कि नहीं। बट नॉर्मली अगर आपको साइंटिफिक बेसिस से जाना है तो 118 डिग्री तक ये टेम्परेचर ले जाना पड़ता है। और उसके बाद में ये जो कॉन्सेंट्रेटेड जूस है 60% 65% ब्रिक्स वाला, उसको हम लोग ये एक इसका एक स्मॉल पिट होता है, टाइल्ड पिट होता है, इसमें डालते हैं वो। और इसमें वो क्रिस्टलाइज करने के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि बहुत ये लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। और ये अक्रॉस इंडिया, जैसे हम मुजफ्फर गए थे उधर भी ये इस तरह का प्रोसेस होता है। और हुआ क्या है इसके कारण, ये लास्ट प्रोसेस बिफोर ये मोल्डिंग का प्रोसेस बनाने के पहले मैं आपको बोलूं कि जब हमने इसका सर्वे किया तो एक सिंगल कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में हमको ये दिखाई दिया कि 20 साल पहले कुछ 2000 यूनिट चलते थे एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। 2015 में ये 2000 से कम होते हुए 500 तक आ गए, और 500 से आज की तारीख में 2022 में इसकी खाली 250-300 यूनिट्स चल रहे। और इसका एक मेजर कारण यह है कि ये बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और इसको कराने के लिए लेबर नहीं मिलता है, तो ये कारण है। तो ये लास्ट प्रोसेस है, इसमें जो बोलते हैं हम इसको मोल्डिंग, जो इसका जो साचा बोलते हैं हम लोग इधर, उसमें वो 1 किलो 5 किलो इस तरह का वो मोल्ड्स बनाते हैं। तो ये ठहरा आपका ये रहा आपका, ये मास्टर क्राफ्ट्समैन आ गया, ये रहा आपका ट्रेडिशनल प्रोसेस। तो जैसे मैंने ये बोला था आपको, देखो सिंगल कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 10 साल पहले 2000 यूनिट थे, 2015 में 600 फंक्शनिंग थे, और 2022 ये हमारा सर्वे बताता है कि खाली 300। और ये टिपिकल इसका साइज क्या है कि 10 टन केन क्रश करके 1 टन जैगरी उसका लेते हैं। तो 10 टन केन 1 टन जैगरी। तो इसके करंट प्रॉब्लम जैसे हमको सर्वे में पता चले कि बहुत लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और इसलिए डिपेंडेंट है, और लेबर कहां से माइग्रेट होके ये हमारे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे मैंने बोला आपको जीआई भी मिला हुआ है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी जानते हैं, क्वालिटी जानते हैं क्योंकि यहाँ का केन अच्छा है, यहाँ की जमीन अच्छी है, और यहाँ पे मतलब जो खेती करने वाले हैं उनको बराबर पता है कि इसकी गन्ने की खेती कैसी करनी है। हाउएवर, जैसे मैं बोल रहा था कि इनकंसिस्टेंट क्वालिटी आती है क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री होने के कारण उसका, जैसे मैं बोला, मंडे को जो बनाया वो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को सेम क्वालिटी नहीं रहेगा, बैच टू बैच वेरिएशन नहीं रहेगा। और ये काफी एनर्जी इफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है। एनर्जी इनएफिशिएंट का मतलब मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर मतलब बहुत सारे ऑलमोस्ट 100% जैगरी मेकर्स इन सितु जो बगैस बनता है इसका, जो आपको एक्सट्रैक्ट जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बायोमास रहता है उसको हम बगैस बोलते हैं,
वो बगैस फ्यूल करके यूज करते हैं। तो 1 किलो गुड़ बनाने के लिए हमारे कंपटीशन के हिसाब से, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 1 किलो बगैस काफी होता है। बट हमने देखा है कि 2.5-3 किलो तक लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये इनएफिशिएंटली ओपन पिट फर्नेस में बर्न होता है। तो ये इसका एक प्रॉब्लम है। तो वो भी हमने एनर्जी ऑडिट्स वगैरह वगैरह करवाए। और एक प्रॉब्लम इसका ऐसा है कि अनहाइजीनिक प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमने ये जो कमीशन में अभी मैं खुद काम करता हूं, वो कमीशन ने हमको 10 साल पहले एक प्रोजेक्ट दिया था, R&D प्रोजेक्ट। तो उसमें हमने एक रिसर्च क्वेश्चन ऐसा डाला था कि कैन वी डिजाइन, fabricate and installed a plant with continuous process that can address these issues. So at least if some of these issues we can address and demonstrate on a pilot scale, that is equivalent to 10 ton crushing per day. तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक 3-4 यूनिट ऑपरेशन बताऊंगा। मेरे कलीग जो है प्रोफेसर महाजनी, उनके पास वीडियो है, वो वीडियो के साथ आपको बताएंगे। बट ये जैसे बोला कि हमने ट्रेडिशनल प्रोसेस है कि जो मड़ी रिमूवल की है, तो उसमें हमने कुछ R&D किए हैं। और इसमें थोड़ा सा हमने सेमी ऑटोमेटिक वे ऑफ रिमूविंग, और हमने इसमें ये भी किया कि अगर खाली फ्लोटेशन की जगह उसको अगर सेडिमेंटेशन भी करे, जैसे शुगर मिल में करते हैं, इस तरह के भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। वो उसके रिजल्ट हम शेयर करने को तैयार है। दूसरा मैं बोला कि हीटिंग सिस्टम जो है, तो ये देखिए आप, कन्वेंशनल में क्या है कि ये बंदे को 8 घंटा दिन में, 10 घंटा, 12 घंटा ये ओपन पिट फर्नेस के सामने, जहां पे टेम्परेचर मतलब अंदर 600-700 है, उसके बाहर रह के उसको बगैस डालना पड़ता है। तो इमेजिन आप उसकी क्या मतलब वो, इसीलिए हमने जब सर्वे किया तो लोगों को भी पूछा कि भाई ये जो गुड़ बनाने वाले हैं, कितने बच्चे उनके नेक्स्ट जनरेशन में जैगरी बनाएंगे। तो हमको 40-50-60% लोग बोलते हैं कि हम ये धंधे में नहीं पड़ने वाले, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा आपको ऑटोमेशन किया है। आप देख सकते हैं इसमें ये इवापोरेशन पैंस है, ओपन पैंस मतलब ये राउंड पैंस की जगह हमने डाला है। और इसके नीचे से आपका हीटिंग मीडियम है। इट कुड बी थर्मिक फ्लूइड, इट कुड बी स्टीम। आप जैसे देख रहे हैं ये पाइपलाइन के थ्रू स्टीम जा रही है। और ये ओपन क्यों रखना पड़ रहा है अभी भी हमको, क्योंकि इसका स्कम निकलना है, जो भी नॉन शुगर्स है, वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है। अगर नहीं रिमूव किया आपने तो जैगरी में कलर आ सकता है, वो डार्क कलर बन सकता है। वो कंज्यूमर अपील जो है वो ज्यादातर येलो जैगरी है, थोड़ा सा मतलब ब्राइट जैगरी है, कलर है उसको, तो इसलिए वो रिमूव करते हैं नॉन शुगर उसमें से। और आप जैसे जिस तरह से देख रहे हैं कि ये हमने ऑटोमेटेड प्लांट, और अभी ये सीजन में भी चल रहा है, हमारा कोल्हापुर में ये प्लांट है। तो ये हमने किया है, ये बगैस का मैंने बोला आपको। तीसरा यूनिट ऑपरेशन जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी काफी आधा घंटा जो भी आपका जो बनता है कि 1 टन पर डे, और उसके 5 बैचेस निकलते हैं 250 किलो के। तो उसमें हर एक बैच में आपको क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस तरह का लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी करना पड़ता है। तो इसलिए हमने ये ऑटोमेटिक मतलब क्रिस्टलाइजर बनाया हुआ है, और टेस्ट होके अभी काफी इसके जो भी इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स है उसको हमने सॉल्व किया हुआ। ये जो स्क्रू कन्वेयर है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस दिखता है आपको। और एक प्रोसेस है, आप देखिए, अगर इसमें फोटो में दिखता है कि नहीं पता नहीं, कि ये जो मोल्ड बनाने वाले हैं वो चप्पल और नीचे इनके एक वुडन की प्लैंक है। क्योंकि क्या है कि इसका टेम्परेचर अभी भी 60-70 तक रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब नहाने का पानी आपका 40 डिग्री होता है, तो 70 डिग्री को आप कैसे ठहरेंगे ये लोग। तो ये मोल्ड बनाने वाले इसमें जाते हैं चप्पल पहन के, और नीचे वुडन प्लैंक भी रखते हैं। तो ये काफी ड्रजरी ड्रिवन प्रोसेस है। तो इसके लिए हमने एक मैकेनिकल मोल्ड डाला हुआ है, जैसे आप जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इसके जो मोल्ड्स है, वेरी वेल डिफाइंड शेप्स, तो वो इसमें आते हैं। वो आप वीडियो में देखेंगे जब हमारे कलीग आपको वो बताएंगे। और एक यूनिट ऑपरेशन है, आप देखिए इसमें ये जो औरतें हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक जब सीजन चलता है, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे धूप में, पूरे धूप में, आप बोलिए उन्होंने सर, आप देखिए उसमें सर बंधा हुआ है उनका। तो ये अगेन वेरी ड्रजरी ड्रिवन एक्टिविटी, की उनको ये जो बगैस है ऊपर नीचे करना पड़ता है, काफी इसमें एफर्ट्स लगते हैं। तो इसके लिए हमने ये जो रोटरी ड्रायर है, जो बाकी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो सॉमिल आप देखेंगे, तो सॉमिल में भी आप ये जो आपका
ये जो लकड़ी का भूसा होता है उसको करने के लिए रोटरी ड्रायर इज अ कॉमन थिंग, तो उसको हमने इसमें इंटीग्रेट किया। और अभी ये जो ड्राइंग है, जो इसमें से फ्लू गैस निकलता है, आप ये चिमनी देखिए, तो इसको हमने डाइवर्ट किया फ्लू, क्योंकि इसका टेम्परेचर एक 100, 150, 200 होता है, ये जो फ्लू गैस जाते हैं, तो उसकी हीट यूज करके हमने उसको ड्राई, जैसे आप समझिए कि बगैस निकलता है शुगर मिल, अपना जैगरी मिल से, उसका मॉइस्चर कुछ 30-35% तक होता है, और उसको फर्नेस में डालने के पहले उसका मॉइस्चर हमें 15% तक लेके आना पड़ता है। तो वो 35 से 15 ट्रेडिशनली सोलर ड्राइंग करते हैं और सन ड्राइंग करते हैं, हम बोल सकते हैं, उसकी जगह हमने ये डाला हुआ है। तो ये इस तरह का भी एक मैकेनाइजेशन हमने लाया है। और ये मैं बोलूं आपको, पिछले 5-6 साल से हमने ये प्लांट एक जगह डाला है, ये एक वारणा नगर करके, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि वारणा एक एग्रो इंडस्ट्रियल जोन है, जहां बड़ी डेयरी है, शुगर एरियाज है। तो उनके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमको जगह दी थी, वहां पे हमने पायलट प्लांट खड़ा किया था, 10 टन क्रशिंग पर डे। और अभी ये प्लांट हमने पिछले 2 साल से, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ राहुरी की, तो उनका एक रिसर्च स्टेशन है, रीजनल शुगर केन एंड जैगरी रिसर्च स्टेशन कोल्हापुर में है, वहां पे हमने ये प्लांट अभी डाला हुआ है। सो एट 2 sites दिस हैज बीन so एक लास्ट 3 or 4 slides, Professor Mahazani, you allow me, then you can sort of go with your video and show to the participants the video. So ये हमारा ये ऐसा अपील है कि ये जो यूनिवर्सिटी का रीजनल रिसर्च सेंटर है, जागरी रिसर्च सेंटर, वो फार्मर्स को, मतलब जो भी, बिकॉज इसके कंटिन्यूड अभी हम नहीं बोल सकते कि 100% प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हैं, इसके काफी प्रॉब्लम्स हमको दिख रहे हैं, तो हमने उसको गैप्स करके लिखा हुआ है। और हमने ये भी बोला है कि अगर जैगरी का मार्केटिंग करना है तो आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। और हमने एक कॉन्फ्रेंस में, जब मैं यूएस में गया था, तब देखा था कि कोलंबिया के लोगों ने ये लिक्विड जैगरी लाया था, और लिक्विड जैगरी को उन्होंने केन हनी करके नाम दिया था। इतना बढ़िया, मतलब उसको कुछ लेमन टेस्टेड, मतलब वो दिया था, और इतना बढ़िया वो था कि आप चपाती के साथ, उन्होंने बोला ब्रेड के साथ खा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ सैंपल लेके उसको एकदम बढ़िया, और ये हमारी ट्रेडिशन भी है, महाराष्ट्र में काकवी बोलते हैं हम लोग इसको, और ये बच्चे लोग बहुत अच्छे से वो उसको सावरी करके ये प्रोडक्ट खाते हैं। और ये हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर हमने और भी कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए, जिसमें बीट रूट जाम है और टी कॉफी प्रीमिक्सेस। आप आजकल आप देखते होंगे कि ये जो गिरनार कंपनी है, दूसरी चाय की कंपनी भी है, जो एक 3-in-1 बनाते हैं, जिसमें आपका स्वीटनर हो, चाय की पत्ती हो, और ये मिल्क पाउडर हो, तो इसको प्रीमिक्सेस करके काफी उसको अर्बन कंज्यूमर्स को आप ये अर्बन क्या 2-tier cities also are now gearing up of this processed food products. So इस तरह का मैं बोल रहा हूं कि ये हमारा प्लान जो है। And lastly, what I'm proposing and appealing through this NIFTEM and MOFPI conglomerate, that you have a project monitoring unit, if it can sort of continue to sort of help all the states to formulate a federation of the jaggery manufacturing associations, and sort of catalyze and keep assisting this framework, in the framework of whatever you called it as a Prime Minister scheme, a PMFME. If this PMFE office can sort of help formulate such a federated activity, I think it will become a sort of useful in conducting activities of research, continued research, as I said, which is required, analysis and advice to jaggery makers. Many a times they say, what is Kolhapuri jaggery? What is so uniqueness? Why did you get an sort of GI to this? What is so USP of this product? And then education and training to the farmers. So this is what I had to say. I would now request my colleague to sort of share his screen and show the video. धन्यवाद श्री नरेंद्र शाह सर, आपके इनोवेटिव सेशन के लिए। जैगरी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन ट्रेडिशनल स्वीटनर है। लेट मी इंट्रोड्यूस अवर अनदर स्पीकर टू शेयर हिज इनसाइट इन कंटिन्यूएशन। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर संजय महाजनी जी को, जो फैकल्टी इंचार्ज है IIT मुंबई में कार्यरत हैं। आपका तकनीकी क्षेत्र में 33 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव है।
आपको अपने कार्यकाल में अमर डाई कैम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, AICTE यंग इंजीनियर अवार्ड, एक्सेलेंस इन टीचिंग, SP सुक्ता में अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन टीचिंग, PK पटवर्धन अवार्ड फॉर अप्लाइड रिसर्च से भी नवाजा गया है। आप देश के विभिन्न प्रतिमंडल के साथ कार्य कर चुके हैं। आपका शैक्षणिक और अनुसंधान में विस्तृत अनुभव है। आपके लगभग 150 इंटरनेशनल पेपर, 78 कॉन्फ्रेंस पेपर, 7 पेटेंट्स, 1 बुक, 4 बुक चैप्टर्स प्रकाशित हो चुके हैं। आप सेम टॉपिक इनोवेशन इन जैगरी प्रोसेसिंग पर नरेंद्र जी का साथ देते हुए चरण को आगे बढ़ाएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। मेरा हार्दिक स्वागत स्वीकार करें। डॉक्टर संजय महाजन सर। सर, आई एम ऑडिबल? नमस्कार। नमस्कार। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। थैंक यू। सर प्लीज शेयर योर PPT और वीडियो। अच्छा, सबको मेरा नमस्कार। प्रोफेसर शाह ने ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन किया है ये प्लांट के बारे में, जो कुछ इनोवेशंस हमने की है उसके बारे में बहुत विस्तृत उसका एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मैं ये जो प्लांट है उसका वीडियो चलाता हूँ। एक बार मैं ऐसे वीडियो चलाऊंगा और दूसरी बार वापस चला के उसमें बीच में पॉज लेके मैं एक्चुअली एक एक ऑपरेशन जो है, एक एक इनोवेशन जो किए हैं हमने, उसके बारे में वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आप जो देख रहे हैं वो प्लांट का पिक्चर है। इसमें दो चीजें हैं। एक मतलब इवेपोरेशन यूनिट है जिसमें हम जैसे जैगरी पाउडर बनाते हैं, और दूसरा है जिसमें हम जैगरी पाउडर ड्राइंग कंटिन्यूअस मोड में बनाते हैं। तो मैं वीडियो चलाता हूँ, आप देख लीजिए।
हेलो, अगर कुछ आपको सवाल है इसके बारे में तो आप पूछ लीजिए। धन्यवाद संजय सर फॉर योर इंफॉर्मेटिव सेशन। मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि अगर वो अपने सवाल नरेंद्र जी और संजय जी से पूछ सकते हैं अगर उन्हें कोई क्वेश्चन है तो। प्लीज रेज योर हैंड्स। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित करूंगी डॉक्टर दिलीप कुमार जी को, जो कि वर्तमान में ICAR IISR लखनऊ में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। ICAR में आपका 20 वर्ष से अधिक अनुभव है। आप 5 जैगरी बेस्ड फर्म में और 3 जैगरी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में कंसल्टेंट भी रहे हैं। आपने भारत में 20 से ज्यादा IISR मॉडल जैगरी यूनिट्स एस्टेब्लिश करवाई हैं। आपका शैक्षणिक और अनुसंधान में विस्तृत अनुभव है। आपके लगभग 10 रिसर्च पेपर, 2 पॉलिसी ब्रीफ, 2 बुक्स, 20 टेक्निकल बुलेटिन्स और बुकलेट्स एंड बुक चैप्टर्स प्रकाशित हो चुके हैं। मैं सर आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक ना होते भी आपने हमारा सेशन के लिए वेबिनार ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। आपका आज का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन जैगरी प्रोसेसिंग। धन्यवाद शैली जी। क्या आप सब लोग सुन पा रहे हैं हमको? यस सर। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार है और मैं यहाँ पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्रिंसिपल साइंटिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ और 20 सालों से जो है मैं यहीं पे जैगरी में काम कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे एक हमने जो है अपने यहाँ पे जिसको कि हम लोग अपना ही IISR मॉडल कहते हैं, 3 पैन जैगरी यूनिट, यहाँ पे एक किसानों के उद्देश्य से 1 टन पर डे जिसकी कैपेसिटी है वो हम लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया हुआ है और इसी में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को जानते हैं कि गुड़ जो है, गुड़ अभी का नहीं, गुड़ बहुत पहले का ही ये प्रोडक्ट है हमारे देश का। और अब जैसे ही आज शहर की जनता जो है बहुत ज़्यादा जब हेल्थ कॉन्शियस हो रही है तो अब जैगरी का जो है गुड़ का प्रचलन हमारे यहाँ भी और विदेशों में भी धीरे धीरे जो है जोर पकड़ रहा है। और ये जो पहले स्वीटनर सेक्टर में था गुड़ हमारा, अब ये स्वीटनर सेक्टर से वेलनेस सेक्टर में आ रहा है कि हमें हेल्थ को लेकर के लोगों ने जैगरी को जो है यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो इसकी संभावनाएं भी अब बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं कि हम इसमें उद्यमिता जो है अब डेवलप करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इसका जो है अब कॉस्ट भी बढ़ गया है, अच्छी कीमत मिलने लग गई है गुड़ बनाने वालों को। तो अब हम जो है अब इसमें उद्यमिता विकास में जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे और नए नए एवेन्यूज भी खुल रहे हैं कि कैसे हमें इसमें ऑटोमेशन करना है, कैसे हमें इसकी पैकेजिंग करनी है, कैसे हमें इसको वैल्यू ऐड करना है, कैसे जो है इसकी प्राइस बढ़नी है और कैसे हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को जो है थोड़ा सा और अपने फार्मर्स को इन सब का जो है हम इसकी आय में वृद्धि कर सकें। तो इसके लिए जो है हमारे यहाँ काम चल रहा है। ये कुछ जैगरी के बारे में जो बेनिफिट्स हैं ये अक्सर जो है सभी लोगों को मालूम है। और गुड़ का पोटेंशियल मैं जो है जहाँ भी जाता हूँ तो मैं बताता हूँ 2 चीज। एक तो आप अगर जो सरकार का जो प्रोग्राम चल रहा है कि लेडीज में जो है आयरन की कमी है, तो ये तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आयरन की कमी को पूरा कर सकता है। बच्चों में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को जो है ये सॉल्व कर सकता है अगर हम इसे मिड डे मील में ले आएं। और जो हमारी सबसे बड़ी जो शहर की प्रॉब्लम है वो है एयर पोल्यूशन। तो ये कुछ हद तक आप एयर पोल्यूशन को भी जो है उसकी प्रभाव को कम करने में ये हमारी मदद करता है। जैसा कि सब लोग जानते भी होंगे कि जितने भी हमारी डस्ट वाली इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो सीमेंट की इंडस्ट्रीज हो, चाहे आप जो है क्रशर्स हो, चाहे आपका
जो ट्रैफिक पुलिस वाला है जो वहाँ खड़ा रहता है, तो जितने भी डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हैं उन सबको गुड़ देना मैंडेटरी है। वो वहाँ के फैक्ट्रीज के मालिकों द्वारा कम से कम डेली जो है 22 ग्राम गुड़ अवेलेबल कराया जाता है। तो क्योंकि ये जो है आपके लंग्स को जो है क्लीन करने में मदद कर देता है। तो ये 3 प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि हम गुड़ के द्वारा जो है ये तीनों चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा गुड़ में जो मिनरल्स हैं वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कंटेंट है। ये कुछ अब डिमांड्स धीरे धीरे जो है, पहले हम लोग बेसिकली जो बनता है यहाँ पे 4-5 ही जगहों में, और इसका एक्सपोर्ट भी जो है नॉर्मली हम अफ्रीकन कंट्रीज और इसमें करते हैं, लेकिन अब जो है धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। ये हमारा जो है अगर हम शुगर से कंपेयर करें, क्योंकि आजकल एक जरूरत हो गई है कि आदमी चीनी छोड़ना चाह रहा है लेकिन वो क्या चीज ले, तो उसके ऑप्शन में एक जैगरी गुड़ ही आ रहा है। लेकिन गुड़ की लिमिटेशन जो लोगों के द्वारा है कि गुड़ पूरे साल या तो उनको मिले और जिस फॉर्म में वो चाहते हैं उस फॉर्म में मिले। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि गुड़ के जो तीनों फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और पाउडर फॉर्म में, तो ये तीनों फॉर्म में गुड़ अगर लोगों को पूरे साल उपलब्ध रहेगा तो लोग जो है चीनी का जो अल्टरनेटिव चाहते हैं वो हम गुड़ दे सकते हैं, क्योंकि चीनी में जो नहीं है वो गुड़ में है और जो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये हमारी डिमांड्स हैं कुछ जो है जैगरी की। हमारे एक्सपोर्ट्स भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जो हम लोग बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमारे यहाँ 3 तरीकों पे हो सकता है। एक तो गुड़ बनाने पे, जिसमें कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है, वैल्यू एडेड गुड़ है, पाउडर जैगरी है। दूसरा हम लोग कर सकते हैं जो हमारा गुड़ बनाने का जो यूनिट लग रहा है, धीरे धीरे जैसी उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, वी नीड मैकेनाइजेशन, वी नीड ऑटोमेशन। तो हमें वो भी चाहिए कि ये बनाने वाले जो इस फील्ड में जो जैगरी यूनिट्स इस्टेब्लिश करते हैं वो भी इसमें जो है बहुत अच्छा जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में आ सकते हैं। और जो है आजकल एक नया फील्ड जो आ रहा है वो है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जैगरी के भी एवेन्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू, चूंकि इनका प्रोडक्शन अभी कम है तो इसको वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है। नॉर्मल जो हमारा ऑर्गेनिक जैगरी नहीं है उसकी लगभग दुगनी कीमत मिलती है इसको। तो ये कि ऑर्गेनिक सेक्टर भी जो है बहुत तेजी से आ रहा है, जिसमें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाह रहा था कि कैसे वैल्यू एडिशन हेल्प करता है। खाली साइज, आप खाली गुड़ की साइज जो है, जो हम लोग जो ट्रेडिशनल भेली है 5 से 25 किलो वाली, वो 30 किलो पर केजी में मिलती है। जो हम 1-2 किलो वाले जो ब्लॉक्स हैं, साउथ में बकेट टाइप में मिलते हैं, यहाँ साबुन के टाइप में मिलते हैं, जो कि बेकरी इंडस्ट्री यूज करती है, वो 32 रुपए किलो तक है। लेकिन क्यूब्स अगर आप 20 से 22 ग्राम पे ले लें तो वो 100 रुपए किलो बिक रहा है। और जो जैगरी कैंडी है जो 2 ग्राम की एक है, वो लगभग 1000 रुपए किलो पे चल रही है। तो ये खाली एक साइज का वेरिएशन ही कैसे हेल्प कर रहा है आपकी कीमत में। और अगर हम इसी तरह से अगर हम प्लेन जैगरी लेते हैं तो वो लगभग 60 रुपए किलो बिक रही है। अगर स्पाइसेस ऐड करके बेच रहे हैं तो वो 100 रुपए किलो बिक रही है। और अगर हम उसमें हर्ब्स, ड्राई फ्रूट्स और ये सारा कुछ ऐड कर दे रहे हैं तो वो 200 से 300 रुपए किलो तक भी बिक रही है। और अभी इस बार प्रगति मैदान में जो है हमने देखा, एक अयोध्या का एंटरप्रेन्योर था, तो वो यहाँ से एक लीड लेकर के लखनऊ में आया। तो लखनऊ में 56 भोग एक मिठाई वाला है, वो 50,000 रुपए किलो की मिठाई बेचता है। तो वो उससे जो है एक हल्का सा लीड लिया उसने कि उसमें वो चांदी और सोने का अर्क डालता है। तो उसको लेकर के वो भी अपना गुड़ में जो है ये डाल करके उसको 50,000 रुपए किलो का जो है गुड़ उसने वहां पे डिस्प्ले में रखा था। तो ये है कि अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं तो कैसे उससे मदद मिलती है, ये आप जो है कर सकते हो।
अब जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है कि हमारा जो एंटरप्रेनर है और फार्मर है, थोड़ा सा R&D पार्ट से हाइजीन, सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, इक्विपमेंट्स कहाँ से मिल पाएंगे बढ़िया, वैल्यू एडिशन हम कैसे करें, क्लैरिफिकेंट्स हम कौन सा डालें, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, इन सब के बारे में थोड़ा अनभिज्ञ है। तो इसके लिए जो है, ये आप चाहे तो जो है इसके लिए सरकारी स्कीम्स का तो आप देख ही सकते हो आजकल, और अगर इसमें हमारा संस्थान जो है मदद करता है इन सारे कामों को लेकर के, राइट फ्रॉम प्लानिंग, आपका बिजनेस मॉडल बनाना, आपका सारा कुछ नीचे तक पैकेजिंग और मार्केटिंग तक के लिए जो है मदद करने के लिए हमारा संस्थान आगे आता है। तो ये जैसे कि एक सिंपल जो आपके जो BIS स्टैंडर्ड्स हैं कि हमारी ग्रेड 1 जैगरी और ग्रेड 2 जैगरी कैसे होगी, उसमें सुक्रोज का या रिड्यूसिंग शुगर मॉइस्चर कैसे रहेगा, ये ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को नहीं मालूम है। वो खाली जो बन रहा है बस उसी की मार्केटिंग चाहते हैं, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा, आप अगर हमारे पास आते हैं, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेकर के, थोड़ा सा जो है ज्ञानवर्धन करके और थोड़ा सा अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग करके हम लोग अच्छा गुड़ बना सकते हैं, और जिसकी की मार्केट में आपको अच्छी कीमत मिल सकती है। तो जो हमारे एरियाज हैं एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के, वो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, पाउडर और वैल्यू एडेड जैगरी है। और जो हमारा सॉलिड जैगरी का प्रोसेस है वो काफी लोगों को मालूम है, बस सिंपल ये है कि हम लोग जो है 3 पैन 4 पैन ये सब यूज करके हम लोग जो है अपने हीट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करके, और हम लोग जो है बेसिक जो हमको ध्यान देना होता है दैट इज कि अगर जब क्रशर के क्रशिंग, एक तो आपका जो है अगर आप क्रशर पार्ट पे जाते हैं तो क्रशर पे भी जो है आजकल अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स जो है क्रशर सेक्टर में आए हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्रशर बना रहे हैं, जिसकी की इफिशियंसी, एक्सट्रैक्शन इफिशियंसी ज़्यादा है, 70 से 75% तक की इफिशियंसी लोग ले गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो है प्रोडक्शन जो है आपका बढ़ जा रहा है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ जा रहा है, तो आपकी कॉस्ट कम हो सकती है। तो जैसे ही हम क्रशर पे क्रश करते हैं, पहला चीज हमको ध्यान देना चाहिए कि उसका मेजर करें हम कि उसमें ब्रिक्स कितना है और उसका पीएच कितना है, क्योंकि ब्रिक्स और पीएच डिसाइड करने वाले हैं कि आपका कितना गुड़ निकलेगा और आप कितना क्लैरिफिकेंट उसमें पड़ेगा। अगर आपके जो है जूस का पीएच कम है, क्योंकि पीएच बढ़ाना है हमें, तो कितना पीएच है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितना, अगर लाइम ऐड करना है तो कितना ऐड करना है, आपको वेजिटेटिव क्लैरिफिकेंट अगर करना है कि डालना है तो कितना डालना है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं कि आप तो छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हैं, पोर्टेबल पीएच मीटर अवेलेबल है, ब्रिक्स मीटर अवेलेबल है, आप उनसे मेजर करके ये डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि फिर हमें जो है, क्योंकि जितना जल्दी गुड़ बन जाएगा गुड़ की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, तो यही हमें ध्यान देना है कि कितना जल्दी हमें बन जाए। और उसका जो लिमिटिंग फैक्टर है वो है इसकी जो मैली कहते हैं, गुड़ का जो स्कम ऊपर है, स्कम जितना जल्दी निकल आएगा, गुड़ साफ हो जाएगा, गुड़ का रस जो है गन्ने का, उतना ही जल्दी हम कंसंट्रेशन पार्ट में चले जाएंगे और उतना ही जल्दी गुड़ बन जाएगा। तो स्कम निकालने के लिए पीएच बहुत रोल प्ले करता है कि पीएच हाई होना चाहिए, पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ही जल्दी स्कम निकल आएगा और हम कंसंट्रेशन में जा सकते हैं। तो ये हमारा लिक्विड जैगरी का प्रोसेस है पूरा, और इसमें खाली जो सॉलिड जैगरी, लिक्विड जैगरी और पाउडर जैगरी है, इसमें खाली हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस है मेनली। जो हम सॉलिड जैगरी है उसमें 118 से 120 डिग्री तक का हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, जो लिक्विड जैगरी है उसमें 105 डिग्री का होता है, और जो आपका सॉलिड जैगरी है वो 121 से 130 डिग्री के ताव पे हमको बाहर चार्ज को निकालना पड़ता है। पाउडर जैगरी में हमारे अनकापल्ली सेंटर ने आपका जो है छोटी छोटी मशीन डेवलप की है, जो आप ये बीच वाले में देख सकते हैं। तो पहले हम लोग ये लेडल और स्क्रैपर से करके इसको
जो मैनुअल मेथड है। अब हमारे पास एक छोटी सी मशीनें हैं जो 15-25 किलो से लेकर के 100 किलो तक की मशीनें अवेलेबल हैं, जिसमें कि आप रोटेट करके जो है गुड़ का जो है एक आम किसान जो 1 टन पर कैपेसिटी वाला किसान है वो निकाल सकता है। इससे बड़ा जो है, जैसे ही आप 100 टीसीडी से ऊपर बढ़ते हैं, 100 टीसीडी से ऊपर हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं जो कि कंटिन्यूअस मेकिंग है और पाउडर मेकिंग में जा सकते हैं। लेकिन एक एवरेज एंटरप्रेन्योर जो कि 10 टीसीडी की कैपेसिटी का अगर प्लांट है तो हमारे पास उसके हिसाब से छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल है। लिक्विड जैगरी के लिए पूरा का पूरा प्लांट जो है आप कोल्हापुर सेंटर पे जाके देख सकते हो, उनके पास पूरी डेवलप्ड जो है पूरा यूनिट है पूरा जो है, जो कि आप उसे देख करके और वैसा आप लगा सकते हैं। और वैल्यू एडिशन में हमें जो ध्यान रखना होता है कि जो चीजें हमें डालनी है वो कहाँ डालनी है, कब डालनी है, कितनी डालनी है और कैसे डालनी है। तो इन सब की ट्रेनिंग हम जो है यहाँ पे संस्थान में अपने यहाँ पे करवाते हैं। और इससे जो है आपका क्या होता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आपका अच्छा बनेगा और उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी, तब जाकर के उसका जो है आपको अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे संस्थान से ट्रेनिंग लेकर के लोगों ने निकाले हुए हैं, जैसे कि गुड़ चना है, चने के ऊपर रोस्टेड चने के ऊपर गुड़ की कोटिंग है, गुड़ की कैंडीज है, अलग अलग वैल्यू में है कि सौंफ की हैं, सौंठ की हैं, कोकोनट की हैं, आपकी जो है कुकीज हैं, गुड़ बेस्ड जो है गुड़ कोटेड सौंफ है, गुड़ कोटेड पीनट्स हैं, आपके पाउडर हैं जो कि उसमें आपका हल्दी डला हुआ है, सौंठ डला हुआ है, तो और ये छोटी इलायची की भी जैगरी है जो कि गर्मियों में यूज करने के लिए होती है, गुड़ आटे के बिस्किट्स हैं, शरबत के पाउचेज हैं, आपके शक्कर के पाउचेज हैं, और ये जैम्स हैं, जेलीज हैं, और आपका आजकल मोरिंगा पाउडर मिक्स करके जैगरी बन रही है। और आपका जो कोटेड, आजकल एक कोटेड सेक्टर भी आ गया कि हर चीज के ऊपर जो है कोटिंग जैगरी की करने लग गए हैं। तो इसके लिए भी हम अपने यहाँ पे जो है छोटी सी मशीन बना के रखे हैं जिसमें कि हम ऑप्टिमाइज करते हैं इन सारी चीजों को। उसके बाद से कमर्शियल स्केल की मशीनें अवेलेबल है इसमें कोटिंग पे। तो ये सारे हैं, गुड़ की आइसक्रीम है। तो ये सारी चीजों का आज आने वाले टाइम में स्कोप बढ़ रहा है। गुड़ के ही आपके बेक्ड प्रोडक्ट शुरू हो गए, गुड़ की मिठाइयां शुरू हो गई हैं, जिसको कि शुगर फ्री के नाम पे बेचा जा रहा है कि शुगर फ्री। शुगर मीन्स वो चीनी से लेते हैं कि इसमें चीनी नहीं डाला है, तो वो चाहे गुड़ है, चाहे शहद है, चाहे पाम है, तो वो कर लेते हैं, इसको शुगर फ्री करके मार्केट कर रहा है। तो यही बेसिकली हमारे एरिया है। क्रशर है, फिल्ट्रेशन पे है, फर्नेस डिजाइन पे है, मोल्ड्स पे है, पैकेजिंग पे है और ऑटोमेशन है। इन पे आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो सकती हैं। क्रशर जो है अब हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे क्रशर्स हो गए। हम लोग कोलू से जो कि 50% की क्रशिंग थी, हम लोग अब 75 to 80% की क्रशिंग पे पहुंच गए हैं। तो इससे हमारा क्या हो गया है कि 3 से 4 किलो हम लोग जो है हमने अपना प्रोडक्शन पर 100 kg पे बढ़ा लिया है रिकवरी जैगरी की। तो जहां हम 10% की रिकवरी लेते थे वहां अब हम 13%, 13.5% पे आ गए। फिल्ट्रेशन में भी अब हमारे पास रोटेटरी फिल्टर्स हैं, वाइब्रेटरी फिल्टर्स हैं। तो इन फिल्टर से हमको स्कम निकालने में कम टाइम लगता है, और स्कम में जितना कम टाइम लगेगा आप कंसंट्रेशन में उतना जल्दी चले जाओगे और आपके गुड़ की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो ये जो हमारा डिजाइन है 3 पैन ओपन फर्नेस का, जो ओपन फर्नेस में है, इसमें जो हम लोगों ने थोड़े बहुत इनोवेशंस किए हैं कि जो आपका कंसंट्रेशन पैन है उसकी पेंदी जो है जितनी मोटी होगी, आपका जो है प्रोडक्ट की हीटिंग उतनी यूनिफॉर्म होगी और क्वालिटी गुड़ की उतनी अच्छी आएगी। और अब अगर आप की कैपेसिटी बढ़ती है, जहां आप 10 टीसीडी से ऊपर की कैपेसिटी पे जाते हो 50 टीसीडी पे, फिर आपको जो है बॉयलर बेस्ड फर्नेस है अवेलेबल हैं अब मार्केट में, आप इससे जा सकते हो। अब आपके पास इलेक्ट्रिक बेस्ड फर्नेस भी अवेलेबल है जिसमें कि आपको बॉयलर और टरबाइन की जरूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिक बेस्ड है। और मोल्डिंग भी अब ऑटोमेटिक
जैसे ही आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, ऑटोमेशन मोल्डिंग में भी हुआ है, ऑटोमेटिक मोल्डिंग मशीन्स अवेलेबल है आपके सिलिकॉन, क्योंकि पहले हम लोग जो है स्टील के मोल्ड्स यूज करते थे, वुडन मोल्ड्स यूज करते थे, अब जो है सिलिकॉन के मोल्ड्स अवेलेबल हैं। आप उसमें किसी भी तरीके का, किसी भी शेप और किसी भी साइज का आप चाहते हैं तो सिलिकॉन के मोल्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जो है फर्म में रजिस्टर्ड है, जो कि वो बनाती हैं। ये कुछ पैकेजिंग्स हैं जिसको कि मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स ने भी ये पैकेजिंग की हुई है। तो इससे भी, पैकेजिंग से भी जो है काफी अब जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग भी अवेलेबल है, इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ डेवलेबल है। हमें गुड़ को सुखाने के लिए मैकेनिकल ड्रायर है, बगास बेस्ड ड्रायर है, सोलर बेस्ड ड्रायर है। कुछ जो ये क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे ब्रिक्स मीटर है, रिड्यूसिंग शुगर मीटर है, कलर मीटर है, और स्ट्राइकिंग पॉइंट टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलार्म है हमारे पास, इसका हम लोग यूज करते हैं। ऑटोमेशन में हमारे यहाँ पे अब जो है टेम्परेचर सेंसर्स हैं, ऑटो फीडर्स हैं, टर्बोचार्जर्स हैं, कंट्रोल पैनल्स हैं, और ये स्किमर है, स्क्रैपर है, एजिटेटर्स हैं, ऑटो डिस्पेंसिंग लाइन जो हम मोल्डिंग के लिए कह रहे थे वो है। तो ये कर सकते हैं। और भी कुछ इमर्जिंग एरियाज आ रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। आपका बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन में हम बगास से जो है पैलेट्स करके इनको जो है बिक्री कर सकते हैं। अब जो है पाउचेस बनने लग गए हैं, बगास बेस्ड है, जैसे कि पैंटीन ये बना रही है, ये बगास बेस्ड है शैम्पू के पाउचेस। हमारे पास जो अपने कटलरी सेट्स जो डिस्पोजेबल्स हैं अब वो आ रहे हैं। हमारे जो आपके टिश्यू पेपर्स हैं वो जो है आ रहे हैं। प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री है वो बगास को यूज कर रही है। और एक और सेक्टर जो है हमारे यहाँ पे, जो जैगरी पाउडर से हम लोग जो है क्यूब्स बना रहे हैं, जैसे कि शुगर क्यूब्स अवेलेबल हैं, वैसे ही जैगरी के भी, जैगरी पाउडर से जैगरी के क्यूब्स अवेलेबल हैं, जो कि आप चाय में और दूसरे चीजों में यूज कर सकते हो। और एक और इमर्जिंग फील्ड है आपका फ्रीज ड्राइड शुगर केन जूस पाउडर। तो फ्रीज ड्राइड शुगर केन जूस पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। जब भी आप चाहें इसको जो है पाउचेस में अवेलेबल है, आप रिकंस्टिट्यूट करके आप इसे पी सकते हैं। जैसा कि आजकल आप जब भी एरोप्लेन में जाते हैं तो जो भी आपको चाय और दूसरी चीजें आजकल मिल रही हैं वो सब फ्रीज ड्राइड ही मिल रही हैं। वो फ्रीज ड्राइड होती है, खाली गर्म पानी डाल करके और आपको दे दिया जाता है। तो वैसे ये भी है, फ्रीज ड्राइड शुगर केन जूस पाउडर है, आप इसमें पानी मिला करके रेडी टू रिकंस्टिट्यूट है, आप इसे पी सकते हैं। कुछ फ्यूचर एरियाज हैं जो कि अभी किसानों की, जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी डिमांड है कि जो आजकल क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बड़ा जो है इरेटिक हो गया है। जब हमारा गुड़ बनने का ही सीजन होता है, जो हमारा अक्टूबर से मार्च तक का, इसमें बारिश हो जाती है, तो जो ओपन सन ड्राइंग हम लोग बगास की कर रहे हैं उसकी वजह से अगर कोई गीली हो जा रही है तो उसका प्रोडक्शन रुक जा रहा है। तो इसको चलते अगर जो है उनकी डिमांड है कि जो मार्केट में बगास ड्रायर अवेलेबल है वो हाई कैपेसिटी के लिए अवेलेबल है और उनकी कीमत 15 लाख के करीब है। तो एक लो कॉस्ट बगास ड्रायर यूजिंग चिमनी हीट जो है ये आज की रिक्वायरमेंट है। इस पे हम लोग जो है थोड़ा बहुत काम हम लोग शुरू किए हैं कि कुछ हमारे पास जो इंक्यूबेटर्स आए हैं उनके थ्रू। और एक और जो फील्ड है कि इंडक्शन बेस्ड जैगरी मेकिंग यूनिट। अब जो है खोई की कीमत अच्छी मिल रही है, तो अब किसान चाहता है कि खोई मैं बेच दूं, मेरे पास अगर आप जो है, मेरे पास बिजली की सुविधा है तो आप बिजली से रिलेटेड मेरे को कुछ कर दो कि वो हाइजीनिक भी रहेगा और बहुत ही कम जगह लेगा और चीजें आसानी से बन जाएंगी। तो इंडक्शन बेस्ड जैगरी मेकिंग यूनिट में भी काम चल रहा है। एक आपकी बॉम्बे की फर्म है, उसके साथ हमने टाई अप किया है, और जो वो खोया मेकिंग प्लांट बना रहे थे उसी प्लांट को हम लोग मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम जो है इंडक्शन बेस्ड जैगरी मेकिंग यूनिट बना सके। सोलर एनर्जी बेस्ड जैगरी यूनिट भी जो है धीरे धीरे ये हम लोग इस पे एक छोटा सा पायलट प्लांट पुणे में जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यूजिंग रिफ्लेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी की, जो ऑयल बेस्ड हीटिंग, ऑयल को हम 600 डिग्री तक हीट करके उसको स्टोर कर सकें और फिर उस ऑयल को यूज करके हम लोग जो है जैगरी बना सकें। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा प्लांट जो है इस पे काम चल रहा है पीपीपी मॉडल में। फ्रीज ड्राइड शुगर केन जूस पाउडर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। बगास बेस्ड डायपर मेकिंग यूनिट एक अभी जो है हम लोग इसको काम किए हैं कि इसकी जो सोकिंग पावर है ना, ये 10 टाइम्स वेट जो है पानी सोक कर लेता है बगास को, अगर हम अच्छे से ग्राइंड कर लें।
तो इसको डायपर मेकिंग में जो है जाने के लिए अभी एक हमारा रायबरेली का एक एंटरप्रेनर है, इसके साथ मिलकर के हम लोग BIG में अभी इसको अप्लाई किए हैं। तो ये अभी 3rd स्टेज पे है, होपफुली वी विल गेट। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको यूज कर लें फॉर डायपर मेकिंग। बगास फ्लोर एज अ डाइटरी फाइबर ये इलीगली यूज हो रहा है, लेकिन इसको लीगली ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये लीगली हम लोग जो पिथ से जो फ्लोर बनाते हैं, इट इज अ वेरी गुड डाइटरी नेचुरल डाइटरी फाइबर, तो इसको हम मार्केट में ले आए और मार्केट में धीरे धीरे आने भी लग गया। और थोड़ा सा जो है ऑटोमेशन की जो जरूरत है क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो सेंसर बेस्ड जैगरी यूनिट, कुछ हमारे pH सेंसर्स आ जाएं, ब्रिक सेंसर्स आ जाएं, मॉइस्चर सेंसर्स आ जाएं, तो हम लोग जो है और भी बेटर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं अपने जैगरी यूनिट में। तो ये हमारे कुछ फ्यूचर एरियाज हैं जिसपे कि एंटरप्रेन्योरशिप अभी डेवलप हो सकती है। ये कुछ प्लांट जो हमारा 10 TCD का है, 1 टन जैगरी प्लांट है, उसकी जो है ये कुछ हमारी फिगर्स हैं प्लांट कैपेसिटी की, और ये आपका जो है RR इन सबका। जो हम लोग करते हैं वही है कि हम लोग आपको हेल्प करते हैं बिजनेस मॉडल डेवलप करने में, आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट देना है, जो R&D करनी है, आपकी ट्रेनिंग करवाने में, EDPs करवाने में, प्रोडक्ट और प्रोसेस की लाइसेंसिंग करवाने में, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन हमारे यहाँ एक पूरा प्लांट है इसी के लिए, जो कि हम आपको दे करके चला करके आप ही से प्रोडक्ट बनवा करके और उसकी मार्केटिंग करवा करके हमारे यहाँ पे इश्यू हब है, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करवा करके भी आपको डेवलप करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, और प्रोजेक्ट डिटेल्स भी DPRs बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए। ये हमारे पार्टनर्स हैं कुछ, पटेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राजकोट की है, KS प्रोजेक्ट्स लखनऊ की, कृष्णा एक्टर सतारा के है, बुदा कोती फरीदाबाद, ODOP हमारा जो है यूपी का है, इनसे हम काफी जुड़े हुए हैं, उन्नति तलवारा PAU हमारा पार्टनर है, आदिनाथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मुंबई। ये कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि ये गुड़ बना करके और ये मार्केट में लेकर के बेच रहे हैं। ये बिहार में हम लोगों ने एक शुरू किया था कि वहाँ 3 जैगरी यूनिट लगाई है FPOs के अंडर में, और वो जैगरी बना करके अंडर द ब्रांड नेम चंपारण गुड़ के नाम से करके वो लोग ब्रांडिंग करके आगे बढ़ा रहे हैं। ये आपका गोरखपुर में जो है प्लांट लगाए हैं, देवरिया में है, बस्ती में है, KVKs में है, तो ये एज अ ट्रेनिंग सेंटर्स भी जो है हम यूज कर रहे हैं इनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए। तो ये चंपारण गुड़ है जो वहाँ के FPOs, बिहार के FPOs चला रहे हैं। धन्यवाद। Can I ask a question to Dr. Dilip Kumar ji? Hello? Yes, sir. Can I ask a question? हाँ बताइए। हाँ, डॉक्टर दिलीप कुमार जी, नाइस प्रेजेंटेशन। ये आपके प्रेजेंटेशन में आपने बोला कि ये जो डाइटरी फाइबर जो बना रहे हैं बगैस से, उसको इनफॉर्मल क्यों बोल रहे हैं? अभी वो FDA ने परमिशन नहीं दिया क्या? नहीं सर, परमिशन की बात नहीं है। एक्चुअली है क्या कि इसमें जो पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं और ये सारा कुछ करना है, क्योंकि वो कोई भी जो है क्या कर रहा है कि कहीं से भी लेकर के मिल के फाइबर को लेकर के उसको ग्राइंड करके और डाइटरी फाइबर करके जो है बेच दे रहा है, या बहुत ही फ्लोर बना करके इसको आटे में मिक्स करके बेच दे रहा है। तो इसको जो है हमें बेसिक है कि डाइटरी फाइबर की कैटेगरी में लाने के लिए वो पैरामीटर्स हैं, वो कायदे से करके जो है इंडस्ट्री इसको आगे बढ़ाए तो जो है ठीक है। अदरवाइज मतलब इसको बेकरी इंडस्ट्री में वो दे रहा है ऐसे ही अपने आप ग्राइंड करके कि ये ले लीजिए, ये बढ़िया है बगास का और बनाइए इसको जो है। तो ये थोड़ा सा जो है दिक्कत आ रही है, क्योंकि हमारी फाइबर की क्वालिटी जो मिल की क्वालिटी है और ये जो जैगरी यूनिट की क्वालिटी है, दोनों अलग अलग है। तो इसको थोड़ा अगर मतलब आप
जो कन्वेंशनल डाइटरी फाइबर है उसके साथ उसका अगर प्रॉपर्टीज करके तो कोई पब्लिकेशन एविडेंस लाओगे तो ये एक बढ़िया काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या है कि बगैस इज यूज्ड आइदर, जैसे आपने बोला पेलेट्स बनाते हैं फ्यूल के लिए, या तो फिर कुछ एक पार्टिकल बोर्ड बनाते हैं। तो ये अगर आप इसको डाइटरी फाइबर करके तो काफी वैल्यू ऐड हो जाएगा। तो कुछ काफी पब्लिकेशन कुछ करवा सकते हैं इसका कुछ इसमें करवा रहे हैं सर। एक्चुअली इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं अब इसके लिए, तो हम इसमें काम कर रहे हैं, इस फील्ड में काम करने के लिए कर रहे हैं सर। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद सर फॉर योर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी मोटिवेटिव सेशन। मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने सवाल दिलीप जी से पूछ सकते हैं, या किसी और पैनलिस्ट। श्री लक्ष्मी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Shri Lakshmi, Narendra sir has some questions from you. Okay. What is the Narendra sir, question? Shri Lakshmi is there. You can ask. I did chat with her. मेरा ये क्वेश्चन था कि किसी डिस्ट्रिक्ट से शुगरकेन फार्मर का अगर प्रपोजल बना जाए तो उसको प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। आई थिंक शी हैज ऑलरेडी रिप्लाइड सेइंग दैट 1.5 to 2 months, बट बिकॉज आई मेंशन्ड इन माय प्रेजेंटेशन एट द टाइम कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा कल ही हुआ था और काफी फार्मर्स ने इसको इंटरेस्ट बताया हुआ है। तो इफ देर इज सम हेल्प रिक्वायर्ड, like we will do whatever groundwork in helping these farmers, but I would like to seek help from Shri Lakshmi if she can provide something. Sir, actually, like once the project is set, like the kind of machineries that they want to purchase or the area is set, in that case, our district resource persons will help in preparing the detailed project report. So that will take around 1 or 2 weeks after organization by the DRP and district level committee. This will also take around 1 or 2 weeks. After this process is complete, the application is directly reaching the bank. Okay. So I'll take the name and contact number of the district resource person in Satara later from you offline. Yes, sure, sir. It is available on the website also. You can get it yourself. If anyone wants of any other district also, it is possible. Okay. So Miss Shaili, later on, please provide the contact number of Miss Lakshmi. Shri Lakshmi. Yes, sir. I will provide you a contact number of Shri Lakshmi, and also provide you a contact number of SPMU Maharashtra. I think I have already provided you. You can directly contact with him. Okay. Thank you so much, sir. Yeah. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर नितिन कुमार, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है निफ्टम कुंडली में। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद IDMC लिमिटेड में एनडीडीबी, जो एनडीडीबी की सहायक कंपनी है, उसमें काम किया है। यह कंपनी जड़ी बूटी निर्मित दूध उत्पादों पर काम करती है। आपने अपनी डॉक्टरेट IIT दिल्ली से की है। आपने लगभग 20 रिसर्च पेपर, 2 बुक्स, 5 बुक चैप्टर्स प्रकाशित हो चुके हैं। सर PMFME स्कीम में डेयरी प्रोसेसिंग में प्रमाणित मास्टर ट्रेनर भी है। सर निफ्टम PMU में सह समन्वयक PMFME के तौर पर भी कार्यरत हैं। सर, आपका आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव पैकेजिंग इन जैगरी प्रोसेसिंग। आप प्रतिभागियों के साथ जानकारी साझा करेंगे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शैली। सर्वप्रथम हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे आज के, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी साझा करी है। दिलीप सर से भी काफ़ी अच्छे हमें इनोवेटिव आइडिया और करेंट जो प्रैक्टिसेस हैं जागरी और जागरी रिलेटेड प्रोडक्ट में है, और जो छोटे मोटे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी मिला। जो भी अनुभव शेयर किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये जागरी पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत ही कॉमन वर्ड है। हम हमेशा पैकेज करते हैं, बर्थडे के लिए गिफ्ट पैक करते हैं, अपने सामान पैक करके कहीं जाना हो तो पैक करते हैं। सो पैकेजिंग इज एन आर्ट, एंड एन आर्ट इज ए
you can say a picture or institutions through which the customer will attract, and that's the reason मैं पैकेजिंग को बोलता हूँ a middleman. So packaging is a middleman between the suppliers, the processors, or the manufacturers to the customers. So ये middleman attract करता है with the logo on the package, with the branding on the package, with the nutritional benefits on the package. So these are the functions of packaging. सबसे पहला है कि पैकेट में आपका जो प्रोडक्ट है that is the containment, and it has to be product from external environment. जो बाहर का environment है, चाहे वो टेम्परेचर हो, एयर हो या ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, उससे बचाव हो, लाइट हो, उससे बचाव होगा. This packaging material will provide the convenience, easy to open, easy to seal pack, जैसे फ्लिप में होता है, फ्लिप पैक में, या कंटेनर में होता है, प्लास्टिक के डब्बों में. Then there are different communications which has been made between the suppliers or processors, or you can say the packagers, and then the customer about the prices, then made of manufacturing details, nutrition fat, MRPs, logo, then best before. There are many parameters which will be important for selections of packaging. But today presentation is specific to Jaggery only. So पैकेजिंग का रोल क्या है? जो कंपनी के इमेज है या जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए होता है. समटाइम्स पैकेज का जो रोल होता है वो पुराने प्रोडक्ट को नए प्रोडक्ट के रूप में लाके मार्केट में प्रस्तुत करना होता है और मार्केट से अट्रैक्शन गैदर करना होता है. प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए पैकेज मटेरियल का यूज करते हैं. इट हेल्प कस्टमर टू यूज प्रोडक्ट बेटर, दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस. Or packaging help to reduce the cost, increase sales and profitability. So if we say the package should be strong, the packaging material should be recyclable, it helps to protect the moisture, it helps to protect the light, and the surface had to be lightable. Means आप अपने surface पे product के package के surface पे आप लिखना चाहें, कुछ print कराना चाहें तो it will be user friendly for printing machine. And the last one, it has to be lightweight because packaging do contain some cost also. It involves some cost as well. अब हम लेबल की बात करते हैं. एक पैकेज जो मिडिलमैन की तरह काम करता है, एक पैकेज पे वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो अथॉरिटी के कंप्लायंस के द्वारा, एफएसएसआई के पैकेज रेगुलेशंस के द्वारा और लेबलिंग के द्वारा दिए गए हैं. उसके अलावा जो प्रोसेसर या मैन्युफैक्चरर अपनी अलग से कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो भी पैकेज पे आनी चाहिए. अगर आप एफएसएसआई के स्टैंडर्ड देखेंगे पैकेजिंग और लेबलिंग के, तो फॉर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक एरिया इज गिवन. लोगो का साइज इतना होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए. ब्रांडिंग स्लोगन है या एक्टिविटीज है या पंच लाइन है, उसकी भी साइज की लिमिटेशंस है. इवन द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और न्यूट्रिशनल टेबल, उसकी भी लिमिट्स है कि इससे छोटा नहीं होना चाहिए और पैकेज में 35% से ज़्यादा की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए. सो लाइकवाइज जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एफएसएसआई द्वारा निर्धारित, उनको अपने संज्ञान में लेते हुए पैकेज का चुनाव करना होता है, पैकेज को डिज़ाइन करना होता है. उसके अलावा उस पे वेज नॉन वेज का डिक्लेरेशन देना पड़ता है. इफ देयर इज एनी फूड एडिटिव्स दैट आल्सो हैज टू मेंशन क्वांटिटी, क्वालिटी, बैच इंफॉर्मेशन, उसको वापस से ट्रेस कर सकें. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग, बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट फूड पैकेट्स में होते हैं. एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूज आल्सो हैज टू बी मेंशन. सो डिफरेंट प्रोडक्ट पिक्चर्स आर देयर. प्रोडक्ट पाउडर का है, देन लिक्विड जागली भी है, बकेट्स में है, सैसेज में है. सो फ्रॉम दिस स्लाइड वन कैन विजुलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जागरी नाउअडेज कि प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट कंज्यूमर्स को टारगेट करते हुए बनाए गए हैं. सैसेज में जो हैं हम सभी जानते हैं कि गुड़ चीनी से बढ़कर है,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फास्फोरस और बाकी दूसरी यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर होता है दूध में, जो चीनी में नहीं होता। तो उन सब क्वालिटी की वजह से दूध इज सुपीरियर देन दिस शुगर। एंड डिफरेंट सेगमेंट है, elite people will have chai and coffee with sugar pouches. Rather than sugar pouches, we have the दूध pouches also, दूध powder pouches also. अब बात करते हैं कि जैगरी जो हम लोग पैक करते हैं या जैगरी की जो टिफिन क्वालिटी होती है वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करती है। मॉइस्चर कंटेंट, अगर आप मॉइस्चर कंटेंट की बात करें तो 12% से ज़्यादा हो रहा तो वो तो दूध खराब होना तय है। तो मोस्टली 7% 8% मॉइस्चर कंटेंट हमें मेंटेन करना पड़ता है। एंड द पैकेज मटेरियल शुड बी रेसिस्टेंट टू द मॉइस्चर, मीन्स पैकेज के अंदर का मॉइस्चर बाहर नहीं आए और प्रोडक्ट के अंदर मॉइस्चर पैकेज के बाहर से नहीं आए। ये तभी होता है जब प्रोडक्ट में शुगर होता है, प्रोडक्ट हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर और इट विल रिलीज मॉइस्चर फ्रॉम द प्रोडक्ट टू एस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। जब उसमें मॉइस्चर की लिमिट ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स भी देर, सबसे पहले फंगस होगा, फिर मोल्ड, ईस्ट, देन बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। क्योंकि क्लास ए प्रिजर्वेटिव है शुगर, दूध, तो ग्रोथ कम होते हैं, फंगस तक और ईस्ट तक रहते हैं। चेंज ऑफ सुक्रोज एंड रिड्यूसिंग शुगर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये चीनी दूध को चीनी से अलग रखती हैं। यहाँ पर सुक्रोज और रिड्यूसिंग शुगर का डिटोरिएशन होता है विद द स्टोरेज, डे और लाइट के प्रभाव पे या टेम्परेचर या चेंज इन ह्यूमिडिटी की वजह से देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इनटू अदर फॉर्म। कलर भी जो है हमारा वो डिटोरिएट होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एसिडिटी, जैसे सब बता रहे थे कि एसिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर पीएच ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ दूध, but during the storage also acidity plays a major role. It should not be more acidic, otherwise taste will be deteriorated. Other parameter है ऑप्टिकल डेंसिटी। जब हम दूध खरीदें उससे पहले हम उसको देखते हैं तो दूध के अंदर माइन्यूट पोर स्पेसेस होते हैं। अगर दूध ज़्यादा समय तक बोतल में है या प्लास्टिक कंटेनर में है तो सेटल डाउन होता है, इट बिकम कंडेंस, इट बिकम्स मोर लिक्विफाइड, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। उसके अंदर के जो ग्रैनुलर साइज के पोर स्पेसेज होते हैं वो नलिफाइड हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं और डोल सेटल डाउन होती है, एक लंप में बन जाता है। तो ऐसे डोल को खरीदना पसंद नहीं करते, आपको चम्मच लगा के उसको निकालना पड़ता है। इट विल नॉट गिव यू एन साइज ऑफ ट्यूब्स और अदर शेप। लास्ट है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। It is not for the product, it is the environment outside the product. So if we increase the temperature or humidity, it will have an effect on the keeping quality of jaggery. Sorry. तो ये आप देख पा रहे हैं जो हमने पहले भी दिखाए थे, हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी, द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट ग्रेड ऑफ जैगरी, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 क्या होता है, पर मॉइस्चर कंटेंट आप देखें अप टू 7% इज इन ग्रेड 2। सो दिस मीन्स ग्रेड 1 इज हैविंग 5% मॉइस्चर कंटेंट ओनली, वेरी हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। जो मिल्क पाउडर होता है उसमें 2.5 और 3% मॉइस्चर कंटेंट होता है। ओपन करने के साथ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो दूध भी ऐसा होना चाहिए, पाउडर दूध, कि आप ओपन करें तो इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर विद इन ए आवर और 2। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर इज 10% और 20%। सुक्रोज ग्रेड 1 में ज़्यादा है, ग्रेड 2 में कम है। सो दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ जैगरी। अब हमें पैक करना है और पैकेज तो मार्केट में बेचना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कंज्यूमर पैक बनाएंगे या बल्क पैक बनाएंगे। अगर हम कंज्यूमर पैक बनाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ग्लास कंटेनर है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, दिस थिंग्स आर नोन टू अस ऑल्सो। ग्लास कंटेनर कैसा होता है, देयर आर मोस्टली 2 टाइप्स, लज्जास और कंटिन्यूअस थ्रेड्स। और पॉलिएस्टर या मेटलाइज पॉलिएस्टर्स एलडीपी में, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन में पैक कर सकते हैं, या बायएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन या एलडीपी के पैकेज में पैक कर सकते हैं, या
फिर LDP, POP और इनके कम्बिनेशन इन डिफरेंट रेशियोज से बना हुआ एक कंज्यूमर पैड हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, एल्युमिनियम फॉयल और LDP के कम्बिनेशन में कोई पैकेज बनाया जा सकता है। पैकेज कैन टेक एनी शेप डिपेंड ऑन द मोल्ड। स्टैंड अलोन हो सकता है, पाउच हो सकता है, फ्लिप जिप हो सकता है। अगर बल्क पैकिंग की बात करें तो प्लास्टिक बैग, पर द बैग हैज टू बी मॉइस्चर प्रोटेक्टेड, तो उसके लिए लैमिनेटेड बैग या इनर यूज करते हैं अंदर में, प्लास्टिक बैग के अंदर, ताकि मॉइस्चर से प्रिवेंट हो। इट विल गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑल्सो टू द पैकेज। नेक्स्ट है मल्टी वॉल पेपर सैक विथ प्लास्टिक लाइन। जब पेपर सैक की बात करेंगे तो इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द डूर ऑल्सो, तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाइनर लगाएंगे। टिन प्लेट कंटेनर विथ जूट बैग्स इस तरह के भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक ओवन सैक्स यूज कर सकते हैं। फिर बाई एक्सरी पॉलीप्रोपाइलीन मल्टी कलर प्रिंटेड लैमिनेट पॉलीप्रोपाइलीन ओवन बैग्स भी यूज कर सकते हैं। जो आपने देखा होगा कभी बटल के बड़े बड़े पैक्स आते हैं 25 किलोज, वो सब प्लास्टिक लाइनर उसके बाद पेपर बैग के लाइनर में पैक करके लाए जाते हैं। तो बटर में मॉइस्चर कंटेंट 16% होता है, पर यहाँ पे तो हमारा मॉइस्चर कंटेंट उससे कम है। बट इफ इट इज इन ए सेमी फ्लूइड कंडीशन, obviously the moisture content will be little higher. So we need to select, और हमें पैकेजिंग मटेरियल इस तरह से चुनाव करना है कि इट विल give the appearance to the consumer and it will not able to deteriorate the डोल की जो क्वालिटी है ये सब डिटोरिएट नहीं होगी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दूध अभी हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, या तो हम ब्लॉक्स में कर रहे हैं, या लिक्विड दूध में कर रहे हैं, या नहीं तो पाउडर दूध, पाउडर जार्डी को यूज कर रहे हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग पैकेजिंग मशीन होती है। अगर हम कंटिन्यूअस लाइन की भी बात करें तो तीनों के लिए दूर फॉर्मिंग तक तो सेम रहेगा। उसके बाद जैसे पाउडर है तो पाउडर के लिए अभी सर ने दिखाया था, दिलीप सर ने, कि यू हैव ए पाउडर, फिर पाउडर विल गो ऑन टू द सिलेंडर। उसके बाद उसको तोड़ना होगा, लाइक जैसे पोटैटो फ्लैट्स बनते हैं उस तरह से हम उसको जैगरी का फ्लैट्स बना सकते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पाउडर फॉर्म, और पाउडर दूध विल बी पैक थ्रू एनी काइंड ऑफ मशीन, फॉर्म फिल सील मशीन, FSS मशीन, यहाँ पे जो पिक्चर में दिया हुआ है, जिससे हम लोग मसाले पैक करते हैं या टुरटुरे चिप्स वगैरह पैक करते हैं। इस तरह की मशीनों के द्वारा भी हम पैक कर सकते हैं। तो हमने वहां तक का पिक्चर लिया है कि दूध को ग्राइंडिंग के बाद यहाँ पे डाला, पाउडर फॉर्म विल ग्रो अप विद द हेल्प ऑफ मोटर और इट विल बी कम इनटू द पैकेज। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड दूध बन गया तो लिक्विड दूध की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए उसको पंप करके, इट हैज टू बी पंप, और यहाँ पे डिफरेंट हेडर्स में आएगा। उसके बाद at high temperature, not at ambient temperature, little higher, so that the product will be still in liquid conditions while packaging. और उसके बाद it will be depend on your the capacity, we can have single head filler or double head filler. फिल करने के बाद इसकी सीलिंग, फिर रैपिंग और syringe wrapping करके the product comes into the glass bottle as well as the PET bottle also. Now moving to the blot one. तो ब्लॉट आप देखते हैं डिफरेंट टाइप से मोल्ड यूज करते हैं। हम लोग स्टार शेप में भी डोल के ब्लॉट दे सकते हैं ताकि बच्चे ले सकें। हम लोग डोरेमोन के शेप में भी दे सकते हैं, कार्टून के किसी शेप में हम लोग डोल के मोल्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोल्ड है, दिस मोल्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। हम जिस तरह का शेप देना चाहेंगे वो शेप में लिक्विड जैगरी विल बी कन्वर्टेड इनटू सेमी जैगरी और मोल्ड। मोल्ड में इसमें सेट करेंगे। सेट होने के बाद ये कन्वेयर पे आगे बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली पैक हो जाएगा। और पैकिंग बहुत आसान है यहाँ पे, जैसे चॉकलेट पैक होता है या जैसे फिर आइसक्रीम पैक होती है, इट विल स्लेब में वो पैक हो जाएगी एंड इट रेडी फॉर सेलिंग। सो ये यू कैन सी दिस इज ए ड्रीम,
थोड़े समय के बाद हमारे आपके बच्चे ब्रेड पे रोल टाइस ब्रेड लगा के सुबह को अपना ब्रेकफास्ट करें, या तो इसके साथ या पराठों के साथ। तो with this dream, I would like to stop here and thank you for listening me. And if you have any questions, suggestion, please speak up, or I am ready to help you in any form. Even if Tom Kundli is ready to help you in any form, either for packaging, branding, or new product development. Thank you very much. Thank you, Sally. And over to you. Thank you so much, sir, for your informative and motivative session. मैं प्रतिभागियों से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने सवाल नितिन सर से पूछ सकते हैं। I'm giving my contact detail here. डॉक्टर रोली गुप्ता जी, आपका कोई प्रश्न है? I unmute yourself. रोली गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप हुआ है, सैली, मैं क्या उसको ले सकता हूँ? इट्स यस सर, आप बिल्कुल ले सकते हैं। पैकेजिंग प्रिंटिंग कैसे और कहाँ से कराई जाए? पैकेजिंग आप अपने नियर बाय एरिया में ही कराएं, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल हर दिन यूज होने वाली सामग्री है और उसको आपको हर दिन चाहिए होगा। तो जहाँ पे सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो और जहाँ सबसे कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो वहाँ से ले, बट हाँ, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करनी है, ना ही पैकेजिंग मटेरियल के डेज को कम करना है, ना उसके ऊपर लिखे हुए एक भी पैरामीटर्स या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में किसी में कटौती करनी है। आप सप्लायर से कोटेशन लेंगे तो आपको डिफरेंट प्राइस मिलेगा। दिलीप पाटिल जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है सर, आपने सब आपका सेशन पूरा पैकेजिंग के ऊपर था, पाउचेस के ऊपर था, थैलियों के ऊपर था, सब पैकिंग। तो आजकल समस्या ये आ रही है कि बड़े बड़े शहर बरसात में जैसा दिल्ली ब्लॉक हुआ, मुंबई तो हमारा हमेशा होता रहता है, नालियां जाम होती है, प्लास्टिक पाउच, उसमें अलग अलग गुटखा वगैरह, कैरी बैग्स वगैरह ये आता है। तो अगर हम, मेरा सवाल ये था सर आपसे, आपने बोला कि गुड़ की पाउडर फॉर एग्जाम्पल 7% ह्यूमिडिटी वो अच्छी रहती है, ओके। तो उसमें, हाँ, तो उसमें अगर हम और एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी होती है वो लगभग 1% होता है। तो अगर हम गुड़ पाउडर की ह्यूमिडिटी और लेस कर दे, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक के बराबर कर दे, तो हम प्लास्टिक पाउच के बजाय डिग्रेडेबल पाउच या कॉटन या धागे के बना के भी दे सकते हैं ना सर? नहीं, पहले तो मैं आपको सही करना चाहूंगा, एयर में ह्यूमिडिटी 1% कभी होती नहीं है एटमॉस्फेयर में। हाँ, एटमॉस्फेरिक एयर में इट्स कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और वो 50 से नीचे और 65 से नीचे तो कभी आप देखते भी नहीं होंगे। बहुत ड्राई स्टेज में राजस्थान वगैरह में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी कम होती है, अदरवाइज 60, 70, 75 ह्यूमिडिटी होती है एयर में। सर्दियों में कम हो जाती है, गर्मी में ज्यादा होती है। ओके ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव, ओके, जो न्यूज में टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताए जाते हैं वेदर रिपोर्ट में। ओके ओके। तो बिकॉज ऑफ शुगर, और हमेशा गुड़ या चीनी या मिल्क पाउडर या कोई अन्य पाउडर है, वो प्रोडक्ट जब आप खुले में रखेंगे तो आधे घंटे या 1 घंटे या हो सकता है 3 घंटे बाद वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। इट्स ए प्रॉपर्टी टू अचीव टू इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। उसमें एक्सचेंज होता है, या तो मॉइस्चर लेगा या देगा।
इवन ब्रेड को भी आप बाहर रखते हैं तो ब्रेड बिकम सॉगी, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। लेकिन हाँ, ब्रेड को अगर फ्रीज में रखते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, उससे मॉइस्चर निकल के फ्रीज के पीछे पानी वाले छोटे कंटेनर में जमा हो जाता है। तो अगर आप जाकरी को ठंडी जगह में रखेंगे तो इससे मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हजारीबाग मुमताज जी, आप अपना क्वेश्चन पूछें। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। बताइए। गुड आफ्टरनून। मैं हजारीबाग झारखंड से विनर विथ यू से हूँ और हम लोग जैगरी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हम लोगों का जैगरी ही है। एक्चुअली इससे पहले जो सेशन था उसमें हम हैंड रेस किए थे और हमें सवाल पूछना था, तो उस समय आप लोगों ने सवाल नहीं लिया। अभी तो पैकेजिंग का चल रहा है, तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ? सवाल पूछिए, स्पीकर सवाल मेरा ये था कि हम लोग अभी छोटा यूनिट लगा रहे हैं, गुड़ प्रोसेसिंग यूनिट का। तो उसके लिए हम लोगों को 30 किसानों के साथ ट्रेनिंग करना है और उसके लिए झारखंड में हम लोग देख रहे हैं। तो एक तो ये है कि आप हमें सजेस्ट करने के करें कि झारखंड में हम लोग कहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग करवा सकते हैं 30 किसानों का। और ये जो हम लोग FSPF नाबार्ड के माध्यम से हम लोगों को यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, तो उसमें बजट हम लोगों का कम है, लगभग 1.5 से 2 लाख है। तो उसमें हम लोग कौन सा मशीन मतलब लगा सकते हैं? ये मेरे 2 सवाल है। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। स्पीकर जो है वो शायद वेबिनार से जा चुके हैं और मैं आपका जो क्वेश्चन है स्पीकर तक पहुंचा के और इसका निवारण जरूर करवाऊंगी। और आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिएगा, मैंने अपना नंबर शेयर किया है चैट बॉक्स में। जी शेयर लीजिए। ठीक है, थैंक यू मैम। आप सुरजीत सिंह का तो मुझे का तो हो गया। सुरजीत सिंह जी, आपका कोई सवाल था? यस मैम, गुड आफ्टरनून। लखीमपुर खीरी यूपी से जी। हाँ, मैं एक DRP भी हूँ मैम और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। जैसे मैं जगरी का भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ जनरली, बट ट्रेनिंग ना लेकर के मैं विदाउट ट्रेनिंग प्रोडक्ट भी कर रहा हूँ। मैं आज के 3 साल पहले से मैं ये कई फ्लेवर के साथ में गुड़ बना रहा हूँ अपना, राइट मैम? और जी सर। हाँ, सर ने बताया भी कि इसमें कई जगह से, लेकिन मैम प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बशर्ते मैम इसकी मार्केट नहीं मिल पा रही है प्रॉपरली, इसको प्राइस नहीं मिल पा रहा सही से, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग तो ज्यादा आ जाती है मैम, लेकिन इसकी वैल्यू सही से नहीं मिल पा रही है मार्केट के ना होने की वजह से। आपका सवाल किससे है? स्पीकर कौन है? इसमें मैम वैसे सर भी बता रहे थे, तो इसमें मेरा जो मेनली था मैम कि प्रोडक्ट को लेकर के, जैसे सर भी बता रहे थे कि सारी मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं, छोटी बड़ी हर तरह से अवेलेबल हैं। तो इसमें था कि जो हमारे शुगर कैन का जूस होता है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज कैसे किया जाए और इसकी कॉस्टिंग हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसमें हम फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम कैसे कम से कम कर सकें। ओके सर। राइट मैम। और इसमें ऑर्गेनिक हमारा जैसे गुड़ मार्केट में बहुत अवेलेबल है मैम, लेकिन इसमें हम ऑर्गेनिक की पहचान कैसे कर सकते हैं? क्या कोई इसका पैरामीटर है या कुछ इस तरह से है कि कुछ इसका फॉर्मुलेशंस हैं कि इसको हम ऑर्गेनिक को कैसे पहचान सकते हैं? मैं रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो प्लीज क्वेश्चन का आंसर कीजिए, सुरजीत जी के क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कैन आई से समथिंग? जी सर, जी सर। हाँ, ये जो सुरजीत जी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है ना,
थोड़ा एक्सपेंसिव मामला रहता है, क्योंकि इसमें क्या आता है देखिए कि जब आपका शुगर केन यूज किया हुआ है, उसके ऊपर आपने कुछ केमिकल रेसिड्यूज है, उसके ऊपर आपने कुछ इंसेक्टिसाइड डाला हो, पेस्टिसाइड डाला हो, तो उसको लेकर के बाद में जैगरी बनाते समय आपने कुछ हाइड्रोस डाला है, सल्फर जैसे बोल रहे थे शुरू में ये डायरेक्टर निफ्टेम जो बात कर रहे थे कि कुछ लोग ये सोडा यूज करते हैं, तो SO2 का वो देखिए उन्होंने जिक्र किया 70 ppm ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लिमिट। तो ये क्या है कि दोनों तरफ से आपको ऑर्गेनिक चाहिए कि इसमें जैगरी में यूज किया हुआ केन ऑर्गेनिक है, और ड्यूरिंग द प्रोसेस आपने केमिकल ज्यादा नहीं यूज किए हुए। तो थोड़ा सा ये आपको अगर एक्सपोर्ट मार्केट में ऑर्गेनिक करके चाहिए तो आपको उसको सर्टिफिकेशन एजेंसीज है, ये निफ्टम के लोग आपको बता सकते हैं कि कौन इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दे देगा, MOFPI के कोई। सर वही सर्टिफिकेट की सर मुझे जरूरत है, क्योंकि अभी मुझे कनाडा एक्सपोर्ट करना था प्रोडक्ट मेरा अपना का, तो उसकी वजह से मुझे नहीं मिल पाया था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि सर इसका कैसे सर्टिफाई हम लोग करा सकते हैं इसको। आप अपेडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं, दिल्ली में है, देखिए अपेडा। अपेडा, हाँ, अपेडा इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। ओके सर। तो उनके वेबसाइट से नंबर निकाल के आप फोन करके पूछिए उनको कि भाई ये कौन से एजेंसीज है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपने अपेडा नोट कर लिया? APEDA? हाँ जी सर, APDEA अपेडा जी, हाँ APEDA, हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। वो आपको जरूर बताएगी आप कौन से सर्टिफिकेशन का क्या प्रोसेस है और कौन दे सकता है। और अभी सर लखनऊ में फूड एक्सपो भी होने वाला है, 1 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक है, तो उसमें भी सर जा रहे हैं, लेकिन लाइसेंस की वजह की ना वजह की तो मार्केट सर इसको बढ़िया नहीं मिल पा रही मुझे, बल्कि प्रोडक्शन मेरा सर 3 साल हो गए सर करते करते, अभी तक इसकी वैल्यू बढ़िया नहीं मिल पाई। मतलब मेरे पास सर जो है कम से कम 26 तरह का गुड़ तैयार होता है सर। कितना टन बनाते हैं पर डे? सर मेरा जो है टन सर नहीं बनता है, मेरा सर 2 से 3 कुंटल ही पर डे प्रोडक्शन हो पाता है जी। 2 से 3 क्विंटल, मतलब 3 क्विंटल सर जी। 300 किलो तक आप बनाते हैं रोज? बस हाँ, मैक्सिमम सर इससे यही कैपेसिटी अपनी है सर, ये छोटी सी, क्योंकि इसमें सर छोटा साइज वो जो हमारा क्रशर है सर, तो जो आपके स्ट्रीट रोड वाले होते हैं ना, जो जूसर मशीनें होती हैं छोटी वाली बैटरी वाली, मैं वही यूज करता हूँ इसमें। तो वो 3 मशीनें हैं हमारे पास, तो उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है, और उसमें सर जो हमारा लगभग में 70-75% जो है जूस निकाल देता है सर। राइट सर। तो अगर आपका ये ऑर्गेनिक दूसरा क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बिकता आपका जैगरी? सर एक्चुअली है क्या, मार्केट हमारे यहाँ का सर जो मार्केट है ना सर, बहुत ही गुड़ हमारे यहाँ सर प्रोडक्शन बहुत होता है। मतलब यहाँ पे सर जो है जो यूपी लखीमपुर का सर जो है बहुत ही यहाँ प्रोडक्शन जो होता है सर, सीतापुर और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना, मतलब सबसे ज्यादा सर फसलों में देखा जाए तो गन्ने का ही प्रोडक्शन यहाँ ज्यादा लोग करते हैं लोग हैं। आपका फार्म कहाँ पे है? ये सर ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में आता है सर, ये यूपी में? जी हाँ, यूपी में आता है, लखीमपुर खीरी जनपद है उसी में ही जी। तो एक बार ये लखनऊ की संस्था में डॉक्टर नितिन कुमार जी से भी मिली है ना, तो आपको थोड़ा सा। हाँ सर, मैं जाऊंगा सर का मैंने पूरा जो आप स्क्रीनशॉट सब मैं लेता गया सर, स्टडी भी करता गया बराबर। मैं सर से मिलूंगा और जरूर सर मैं इस पे कुछ हेल्प मिलेगी आपसे, आप लोगों से। राइट सर। तो जैसे मैं प्रेजेंटेशन में बताया, देखो कि मार्केटिंग उतना ही या उससे भी ज्यादा, प्रोडक्शन से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सर बिल्कुल सर, एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या बोलते हैं कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है कैन यू मेक इट, वो तो आप जानते हैं। दूसरा है कि कैन यू सेल इट, तो आप दूसरे पे थोड़ा सा अटक गए हैं, कैन यू जी बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। और तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप में हम बोलते हैं कि कैन यू सस्टेन इन मार्केट। सस्टेन इन मार्केट मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स है, वो भले आप मतलब आप 100 रुपए से बेच रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर 90 रुपए से बेच रहा है, तो 10 रुपए डिफरेंशियल है, तो आपको मार्केटिंग नहीं मिलेगा। तो ये 3 चीजों के ऊपर आप बनाना जानते हैं, बट मार्केटिंग में थोड़ा सा आपको, तो आप लखनऊ में ही आपको ये डॉक्टर नितिन। और इसमें सर जी एक सर एक चीज में और चीज है सर, इसमें बहुत अच्छी चीज मैंने कर रखी है
जो इसका बगास निकलता है सर, खोई जो निकलती है, इससे हम लोग पशु आहार बनाते हैं। क्या निकलता है, समझा नहीं मैं। जो खोई निकलती है ना सर, गन्ने का रस निकालने के बाद, जूस निकलने के बाद जो बगास निकलता है, बगैस, निकलता है बगैस, सर, हाँ, तो बगैस का बगास क्या निकलता है प्रॉब्लम? सर, हाँ, उसको सर हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोगों की इनकम अच्छी निकलती है सर। तो उसको हम किसको लोग सर जो बेचते है हैं? एनिमल फीड कर, एनिमल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ सर मैं ही। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा, एनिमल फीड में भी सर हम इसको यूज करते हैं, हाँ, बगास को। तो बढ़िया, बढ़िया, सर बढ़िया। हाँ सर, बहुत इसका और एनिमल्स इसको बहुत चाव से खाता है, बहुत इंटरेस्ट होके खाता है, और हेल्दी भी रहता है इससे। करेक्ट। नहीं, जैसे ये डॉक्टर जी नितिन कुमार जी बोले कि जी ह्यूमन सर। कंजम्पशन के लिए भी बगैस से हम लोग डाइटरी फाइबर बना सकते हैं। और सर लेकिन कॉस्टली है, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है सर करेक्ट, वो। करेक्ट। नहीं तो फिर है आप सर, एनिमल्स हाँ। को दे रहे, तो एनिमल्स को भी डाइटरी फाइबर की जरूरत होती है उनके एनिमल फीड में, आप तो जानते ही होंगे राइट, क्योंकि जी सर, आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर सर हाँ, सर हाँ, सर। चलिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं। आप सबके सहयोग से आज ये वेबिनार निर्विघ्न संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही मैं एक बार फिर से आप सभी प्रतिभागियों, वक्तगण, पीएमएफएमई समन्वयकों, गणमान्य अतिथियों और आदरणीय निर्देशक महोदय डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी ओबेरॉय जी और समस्त पीएमएफएमई टीम का, विशेषकर मेरे कलीग अरविंद जी, जिन्होंने इस वेबिनार का सफलतापूर्वक आयोजन कराने में सहायता की, का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। साथ ही आपको पीएमएफएमई और इस वेबिनार से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप हमारे कॉल सेंटर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैंने चैट बॉक्स में दिया है। साथ ही आप हमें मेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।